अच्छा अच्छा। Hello everyone. Hello Hitesh, how are you? Can you hear me? Thank you, Jawadji, for the quick response. Good morning, everyone. Good morning, Dr. Tania. How are you? Just give me 2 minutes. I just silence my phone. I'm fine. How are things going? When are you launching your website? Things are launched fine. No, the not website? yet. Okay. So when are you planning to launch? There's still confusion. I'm at Gurgaon currently. Okay. So Jawadji, good morning. And I sorry you said good morning. So where are you from, Jawadji? Good morning. Good morning. We are just waiting for 1 or 2 more guests and then we will begin. Hiteshji, how are you? गुड मॉर्निंग सत्या जी। हाउ आर यू हितेश जी? फाइन ग्रेट थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो मैं भी वेट ही कर रहा हूँ लोगों का, पता नहीं आज संडे है, पीपल आजकल थोड़ा सा दो दिन का जैसे छुट्टी का माहौल भी था। करेक्ट। हाँ एग्जैक्टली, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू टर्न अप। ठीक है, हम दोबारा करेंगे, कोई बात वी वर एक्चुअली वेटिंग कि आपका कभी सेशन होगा। नहीं सेशंस तो चल रहे हैं हमारे, डिफरेंट प्रोग्राम्स अभी चल ही रहे हैं। लामा फेरा चल रहा है, मेरा सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। तो इसका भी हम लोग दूसरे तरह से कर रहे हैं अभी, ऑनलाइन प्रोग्राम, मतलब रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहे हैं अभी इन सब चीजों का। अच्छा, हाँ लास्ट टाइम आपने बताया था, राइट। हाँ, तो व्हाट इज हैपनिंग कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता लाइव प्रोग्राम करना। हाँ करेक्ट। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पूरा टीचेबल में जा रहे हैं, टीचेबल फॉर्मेट में वहीं पे पूरी चीज को एस्टैब्लिश कर देंगे एंड इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। हाँ, ऑटो पायलट मोड पे चलता रहेगा। हाँ एग्जैक्टली। और हम लोग कुछ नए कोर्सेस भी ला रहे हैं, लाइक एस्ट्रोलॉजी के, रेकी के। सो वी आर प्लानिंग डिजाइन इन ऑनलाइन कोर्स विद इजी रिसोर्स। अच्छा, ग्रेट। हितेश जी, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का जो भी सवाल है, you guys can use also the, yeah, good morning Hitesh ji. Sir, good morning. Where are you from, Hitesh ji? Gurgaon. Okay. And how come you are interested in numerology? Sir, my daughter, she is a numerologist. Acha, your daughter is a numerologist. Yeah. And good morning sir, how are you? Galaxy M30. So your daughter is a numerologist and you want to learn numerology. सर बस ऐसे ही है, शौकिया थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ओके। हाँ जी, वेरी नाइस। चलिए 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। आप लोग जो ज्वाइन कर लिया तो एटलीस्ट उनको नहीं डिले करेंगे, बाकी लोग जो ज्वाइन करते रहेंगे वो करते रहेंगे। सर, गैलेक्सी M30, सर आप अपना परिचय देंगे?
चलिए आप लोग सारे ना यहाँ पे चैट बॉक्स है साइड में, इसको यूज करते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन है कोई भी सवाल है, बिकॉज मैं जब पढ़ाऊंगा व्हेन आई विल, अगर आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए, जस्ट डू लेट मी नो एंड वी विल स्टार्ट द सेशन इन से अनदर 10 मिनट, अनदर 1 मिनट। अब शुरू करते हैं इसका। एंड एनी क्वेश्चन जस्ट कीप राइटिंग ऑन द चैट बॉक्स एंड लेट मी सी, अगर मैं उसको देख लूँ तो मैं बता दूंगा आप लोगों को सारी चीजें। Okay, let us start the things. Let people join. Who is joining? Let these two people at least join. So let's start. Mahesh ji, good morning. Sadhvir ji, good morning. Okay, let me just share my screen and we'll start. Okay, before I begin, let me just tell all of you what will be the flow of this webinar. The flow ऐसा रहेगा कि see, आप लोग इस webinar में join क्यों? There may be reason for this. Okay, there may be challenges with you guys. There may be some kind of an aspirational issues, maybe some kind of the goals you wanted to achieve. और जैसे यहाँ पे अभी बताया one of the participants की उनकी बेटी already and he is interested, so he is learning. So you may be reason. So that may be a part of an aspiration process. तो हम क्या करेंगे? We will try to understand numerology क्या है exactly. And we will see that whether we can find or discover a kind of a solution inside it, and let's see if we can achieve some result. It is not, I practically don't think कि एक दिन में हमें result achieve हो जाएगा, but I still feel that you will able to get a broader perspective in this case, a little bit broader perspective ki what is numerology, how numerology can in a flash help you in understanding some kind of an energy which is actually available with you all the time. Okay, so with your permission, let me just give a little bit introduction about myself. So my name is Satya Datta and I am the author of the book Source. So मैंने 2018 में during one of the meditation, actually मैं ये नहीं कहूँगा कि I am the author of the book Source, because 2018 में during meditation what happened, I got a flash in my Mingmen. हमारे बॉडी में डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं, थर्ड आई यू हैव गॉट मैसेज सेंटर, एक मिंगमेन होता है, लोअर टेंशन कुंडलिनी। तो मिंगमेन में मुझे एक फ्लैश मिला था, एक फ्लैश ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दैट, आई वाज सोल कम्युनिकेटिंग विद दैट। सो वंस आई स्टार्टेड सोल कम्युनिकेटिंग, आई अंडरस्टूड दैट कि जो पूरी ब्रह्मांड की जो सृष्टि हुई है वो एक कहीं एक पॉइंट, एक सोर्स है जहां से पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। एंड इस सोर्स ने डिफरेंट टूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है हम लोग की जिंदगी में। एंड इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो हम अपनी जिंदगी को एक हो सकता है एक फुलफिल्ड जिंदगी की तरह जी सकते हैं। सो हिंदी में हो बोले तो कृपा होगा। हाँ, मैं हिंदी में ही कोशिश कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच जवाहर जी, मैं हिंदी में ही पूरा कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कहीं मेरे मुंह से इंग्लिश का वर्ड निकल जाएगा तो मैं उसको फिर से हिंदी में बोल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। सो मैंने ये बुक तो मुझे ये, मैं मेडिटेट कर रहा था, तो मेडिटेट करते करते मुझे ये फ्लैश दिखाई दिया आप मेरे मिंगमेन के अंदर। तो मैं जब इसके ऊपर इसके साथ सोल कम्युनिकेशन कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें की जानकारी मिली कि ये सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स सब चीज का एक सोर्स है, और जितनी भी चीजें हमारे आसपास है सोर्स ने दी हुई है हमें, सो दैट हम एक बहुत अच्छा बेहतरीन जिंदगी लीड कर पाए। तो मैंने फिर इस बुक को लिखना शुरू किया। बुक ऑटोमेटिकली लिखना मतलब होता गया, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं कहीं, मतलब एक ऑटोमेशन हो रहा था, कहीं ना कहीं चीजें मुझे मिलती जा रही थी और मैं बुक लिख रहा था। और ताजुब की बात यह है कि एक पब्लिशर भी आए, मतलब नोशन प्रेस, जो शायद इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब प्लीज थोड़ा अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। जो इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर है, उन्होंने बुक को पब्लिश की।
लोग पढ़ रहे थे, काफी तारीफें आ रही थी, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने कुछ और प्रोग्राम्स बनाए, जैसे हमने ये बनाई रीडिजाइन ऑफ डेस्टिनी इन न्यूमरोलॉजी, हमने एडवांस न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी बनाए, हमने सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम बनाए। सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम में हमारी 360 डिग्री सपोर्ट प्रोग्राम्स है हमारे पास, बहुत सारी चीजें। तो हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट हम कुछ ऐसे फ्री प्रोग्राम्स क्रिएट करें जिससे एटलीस्ट लोगों को इन सब सब्जेक्ट में थोड़ी सी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ना एक सिंपल नहीं है। अगर आपके आज कोई प्रॉब्लम चल रही है, फिर फेसिंग ए प्रॉब्लम, कोई इश्यू आपकी जिंदगी में है, तो इश्यूज के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। तो हमें एक्चुअली वो डायमेंशंस ढूंढने हैं जहां से वो इश्यूज आ सकते हैं। मे बी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं, कैसे आप सोच रहे हो, आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका कर्मा क्या है, आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो कि हायर एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट करे। तो इसलिए हमने हमारा सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है उसको सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। काफी स्टूडेंट्स ने इसमें ज्वाइन किया है, उनकी रियली लाइफ ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में उनको क्या करना है, उनकी ब्लूप्रिंट क्या है, उसको डिस्कवर कर पा रहे हैं। तो एक तो है आप बहुत सारी चीजें करो, उससे डिस्कवर करो, उससे एक ठोस पैदा होता है, बट न्यूमरोलॉजी भी आपको वो सारी चीजें दे सकता है इन ए फ्लैश। न्यूमरोलॉजी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ पाथ, आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है। और हम इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज लेके आए। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैंने भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी में आई एम ज्योतिष आचार्य, और मैं पीएचडी कर रहा था, मैं कंप्लीट नहीं किया अभी तक उसको। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, मुझे 2 बार अवार्ड मिला है अमेरिका से फॉर माय पेपर इन कैंसर, एंड आई एम ए डिवाइन हीलिंग एंड प्रैक्टिशनर। जैसे अब मैं रेकी की बात करता हूँ, तो रेकी है हमारे चारों ओर एक अर्थ एनर्जी है which is called as रेकी, और हम उसको यूज करके we can bring about a change in our life. Similarly, there are divine healing hands, मतलब frequencies की बात अगर करें तो रेकी से थोड़ी सी हाई लेवल फ्रीक्वेंसी है जिसको डिवाइन हीलिंग हैंड्स बोलते हैं। तो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद द डिवाइन हीलिंग हैंड्स फ्रीक्वेंसी। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद द दाओ हैंड्स हीलर फ्रीक्वेंसी। मतलब दाओ हैंड थोड़ी सी डिवाइन हीलिंग से थोड़ी सी हायर लेवल की एनर्जीज है। सो इससे क्या होता है, अगर कोई हीलर अगर इससे हीलिंग दे किसी को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन देयर लाइफ। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लामा फेरा। आज शाम को हमारा लामा फेरा का भी क्लास है। एंड आई एम ऑल्सो कुंडलिनी क्रिया योग, शिव गोरक्षानंद बाबा जी का कुंडलिनी क्रिया। आई एम ब्लेस्ड टू गेट एन इनिशिएशन इन दैट फ्रॉम गुरुनाथ सिद्धनाथ। तो ये मेरी छोटी सी एक हम्बल मेरी इंट्रोडक्शन है। एंड अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम न्यूमरोलॉजी क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाई? बिकॉज इट इज, आप लोग यहाँ पे आए हो, आप इस वर्कशॉप में आए हो, जरूर कोई इंटेंशन होगा आप लोगों का। आप लोग कुछ चीज समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, कुछ चीज सीखना चाहते हो, तो एक बार जस्ट समझ ले कि हम कहाँ पे हैं, ईच एंड एवरी वेयर एग्जैक्टली वी आर। सो देखिए, न्यूमरोलॉजी या इस तरह की सब्जेक्ट्स हम तभी सीखते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ना। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? प्रॉब्लम फाइनेंसेस में हो सकता है। कोविड के बाद की दुनिया इज फुल ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज कोविड ने हेल्थ चैलेंजेस तो डाला है, साथ में फाइनेंशियल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा डाले। तो फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वोकेशन और टैलेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये वोकेशन और टैलेंट से कितने तरह के प्रॉब्लम्स होती है। एक तो शायद इंसान के पास, एवरी ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। उपेंद्र जी, मैं सब्जेक्ट मैटर पे आ रहा हूँ, प्लीज जरा मेरे साथ बियर कीजिए, ठीक है? मैं आपको बहुत अच्छा चीज में लेके जाऊंगा, बट आपको अगर पता हो कि कहाँ पे आप अभी है ना, तो इससे काफी बेहतरीन सॉल्यूशंस ढूंढी जा सकती है, बिकॉज सारी चीज न्यूमरोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं। आज जरा दो हो रहे ओपन मिस्टर। ओके, सो वोकेशंस एंड टैलेंट होते हैं इंसान का। सो वोकेशन एंड टैलेंट क्या है, इंसान का क्या वोकेशन है, क्या टैलेंट है, तो उसको कैसे ढूंढा जाए। सो दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ना, पर्पस ऑफ लाइफ के लिए भी न्यूमरोलॉजी इज अ वंडरफुल टूल। स्पिरिचुअल जर्नी क्या है इंसान की, सोल की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आप सोल की रिक्वायरमेंट में आएंगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। दूसरे तरह के लोग न्यूमरोलॉजी सीखते हैं क्योंकि नॉलेज गेन करना चाहते हैं। जैसे अब यहाँ पे कोई आए थे, उन्होंने बोला कि उनको नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज गेन किसके लिए चाहिए, सेल्फ के लिए चाहिए या हेल्पिंग अदर्स? अगर सेल्फ के लिए चाहिए, इट्स गुड, बिकॉज सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉलेज गेन अदर्स के लिए चाहिए, दैट इज रियली रियली वेरी गुड। और अचीव सम गोल्स, अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल्स है, तो उनको आप किस तरह से अचीव करोगे। तो कितने तरह के गोल होते हैं, सेल्फ गोल होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गोल होते हैं, और ग्रैंड गोल होते हैं। देखिए, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द सोर्स, बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सोर्स न्यूमरोलॉजी, इट इज नॉट अ डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज सोर्स गिव्स यू लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन योर लाइफ।
सोर्स आपको जिंदगी में बहुत सारे रिसोर्सेज देते हैं। अगर आपका फोकस, आपका गोल सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपको लेके घूम रहा है, तो यू विल गेट सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एंड अगर आपका गोल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा हायर गोल्स है, तो क्या होगा, आपकी रिसोर्सेज जो होंगी वो थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी। यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इन एंटायरली डिफरेंट वे। So every number in numerology is connected with some sort of a planet, some sort of energies are guiding those. एक कुछ energies उसके पीछे है जो उसको गाइड कर रही है। और जब एनर्जीज गाइड कर रही है तो हर एक की अपनी खुद की एबिलिटीज हैं, तो हम उस एबिलिटीज में धीरे धीरे जाएंगे कि कैसी एक चीज आपको एक छोटा सा चीज भी दे सकता है, एक चीज कैसे आपको बिगर चीज भी दे सकता है जिंदगी के अंदर। और एक फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनको एमएसआई चाहिए, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाना है लाइफ में। दे सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। तो उससे क्या होता है, यू कैन बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट योरसेल्फ, एंड आप खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। न्यूमरोलॉजिस्ट बन के क्या कर सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ टीचर ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट, यू कैन ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट्स। आज के डेट में ऑनलाइन इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आप यू कैन क्रिएट योर ओन कोर्सेज, you can write your own books, you can become a blogger in numerology, you can have your own YouTube channel जिससे आप काफी लोगों की मदद कर सकते हो। तो why I'm sharing all these things, because people sometimes say come to the matter, why you're learning something is very very important। I mean to say, अगर आप कोई चीज अगर आप क्यों करना चाहते हो वो पॉइंट आपका क्लियर होगा तो आपको चीजें समझने में ज्यादा बेहतर होंगी, और उससे आप क्या निकाल के लेके आओगे, that will be far more impactful rather than just learning the subject। So न्यूमरोलॉजी कैसे आपको हेल्प कर सकता है, हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू। सो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने पहले बताया, इट इज अ काइंड ऑफ अ सोर्स टूल। ये सोर्स का एक टूल है जिससे, एंड सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो भी चीज आप दुनिया में देख रहे हो, सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स इज द सोर्स ऑफ लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइट, इट इज द सोर्स ऑफ हेल्थ। एंड सोर्स हैज गिवन वेरियस टूल्स, जैसे मैंने पहले बोला, वेरियस टूल्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, source itself, different enlightened masters, everything it has given। So numerology is one of the source tools, and like maths is the base, अंक एक base है, numerology is like a mathematical base। जैसे कोई भी साइंस के पीछे एक मैथ्स काम करता है, कोई भी साइंस के पीछे एक गणित काम करता है, वेदर आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, हर एक के पीछे एक अंक काम करता है। सो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी को अगर फ्लैश में जानना है तो दिस इज, अगर हम उसको क्वांटिफाई कर देंगे तो numerology is one of the best system of understanding and predictive science। So क्या करता है ये न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी आपके सोल, माइंड, बॉडी पोटेंशियल्स को क्वांटिफाई कर सकता है। नाउ दैट इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, and that is why we are going to do that, and it is very easy to understand numerology on the basis of some numbers। but एक क्वेश्चंस बीच में आती है कि why are we suffering, why human beings are suffering at the moment। अगर आपकी हेल्थ चैलेंजेस हैं, आपकी कोई भी रिलेशनशिप्स चैलेंजेस हैं, क्यों चैलेंजेस? अगर सोर्स ने इतनी सारी चीज किया है, चैलेंजेस इसलिए है कि हो सकता है कि सोर्स ने जो रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए उसके साथ हम अलाइनमेंट में नहीं है। एंड न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द टूल जिससे आप इसको पता लगा सकते हैं वेदर यू आर इन अलाइनमेंट विद द पर्पस इन विच यू आर बोर्न। ओके, एंड इफ दिस इज गेटिंग क्लियर, जस्ट टाइप इन द वर्ड क्लियर ऑन द चैट बॉक्स प्लीज, जरा थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए। हाँ जवाहर जी बताइए, आपने हैंड रेज किया। सर एक प्रश्न है कि कई लोगों की मतलब डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है, तो उनके भाग्य या उनके अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, जबकि मिसिंग नंबर भी सेम है, हुआ नंबर भी सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम इन लोगों। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपल एक चीज समझाता हूँ। सी आपके पास सपोज एक चीज है, आपके पास एक हमने कोई टूल दे दिया है और उसके पास भी अपने सिमिलर टूल दे दिया, तो एक चीज तो है विच इज कॉल्ड एज अ फ्री विल ना। आप न्यूमरोलॉजी क्यों सीखना चाहते हो? ताकि आप समझो कि आपकी, इट इज जस्ट नॉट अबाउट द प्रेडिक्शन, इट इज अबाउट योर फ्री विल ऑल्सो। दो बंदे हैं, दोनों का राजयोग है, एक राजयोग से दूसरी की सेवा कर रहा है, एक राजयोग से सो रहा है, ऐश कर रहा है लाइफ में, तो उसके भाग्य तो डिफरेंट होंगी ना। प्रश्न कुंडली एक्टिव हो जाता है ना उसमें। आप एक कर्म लेके आते हो, बट आप प्रश्न में क्या आप बदलते हो उस चीजों को, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लाइफ क्या बनती जा रही है। अगर मेरे पास अच्छा चीज दिया गया है और मैं अपनी फ्री विल को गलत तरह से यूज कर रहा हूँ तो मेरी जिंदगी डिफरेंट होगी। तो मैं फ्री विल को कुछ और तरह से यूज कर रहा हूँ तो मेरी जिंदगी डिफरेंट होगी। So that is why even if the two persons are same, but न्यूमरोलॉजी से हम क्या देखते हैं? न्यूमरोलॉजी से हम उसकी सोल पोटेंशियल्स देखते हैं, उसकी माइंड पोटेंशियल्स देखते हैं, उसकी बॉडी पोटेंशियल्स देखते हैं, उसके अंदर क्या ऑप्शन अवेलेबल है। दैट इज द थिंग।
Is this clear, sir? Right, sir. Yeah, Okay, thank you thank so you. much. Thank you for the question. So what is the purpose of numerology? देखिए अभी हम इनके सर का आंसर को सर के ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा उसका थोड़ा सा और उनका क्वेश्चन को ज्यादा थोड़ा डीप में ले जाते हैं. द होल पर्पस ऑफ एनी डिवाइन साइंस इज प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन का मतलब है आपके पास जो भी सोल माइंड बॉडी पोटेंशियल्स है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी जिंदगी के अंदर, उस ब्लॉकेजेस को आप कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द पर्पस. जैसे ही आप उस चीज को प्यूरिफाई अपनी करना शुरू करेंगे तो आपकी क्या होगी, धीरे धीरे करके आपकी फ्रीक्वेंसी राइज होगी. तो जहां पे भी, जिस जगह पे भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आपकी बॉडी पोटेंशियल उससे थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी एंड आपका वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ एनी, जो भी आप डिवाइन साइंसेस देखते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, इज टू प्यूरिफाई योरसेल्फ. एनी डिवाइन साइंस. सेकंड क्या चीज है? सेकंड, दीज आर ऑल डिवाइन साइंस. नाउ डिवाइन साइंस का क्या मतलब है? दैट मींस दिस हैज सम कनेक्शंस विद देवतास बिहाइंड. नाउ देवतास का क्या मतलब है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर एक न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर, देयर आर नंबर आर कनेक्टेड विद प्लैनेट्स. कुछ प्लैनेट्स की रिप्रेजेंटेशंस होती है, प्लैनेट्स के पीछे कुछ देवतास है ना. देवतास और असुर क्या होती है? देवतास और दोज एनर्जीज जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, एंड असुरस आर दोज एनर्जीज व्हिच एक्चुअली प्रोहिबिट्स अस फ्रॉम डूइंग समथिंग. कुछ चीज अच्छा करने के लिए रोकती हैं, जो चीज हमारी वृत्तियां जो हमें रोकती हैं. So one thing you must understand today that why this numerology is a little bit different from the other numerology, because I am actually going to talk about more about this devatas, this power behind it. तो आप आपके पास दो पावर है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में आएंगे. एक पावर है जहां पे आपका एक दिन जन्म हुआ है और आपका नाम. These are the two most important powers. तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है, आपके जिंदगी में कुछ नंबर्स एक्टिवेट हो गए उस दिन. So जब जिंदगी में कोई नंबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट मीन्स देयर आर सम दैविक एनर्जीज जो आपकी जिंदगी में एक्टिवेट हो रहे हैं. आप उसको जिंदगी में बेहतर यूज करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना सकते हैं. सो द पर्पस ऑफ न्यूमरोलॉजी, वन ऑफ द पर्पस ऑफ द न्यूमरोलॉजी, आई बिलीव, is to create a connection between your date of birth, your name, and what are the available energies, whatever the available divine energies which are present over there. And similarly, there are higher energies जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जिसके साथ आप अलाइन कर सकते हैं. And understand the grand lineage which you belong to. मतलब अगर सोर्स, अगर एक कोई ऐसी चीज जिसने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की है, समझ लीजिए उसकी कुछ अंश, उसकी कुछ पावर्स आपके अंदर मौजूद है, तो आप समझिए what a power you belong to. So whenever you touch these kind of subjects actually, and when you start focusing, जो चीज पे आप फोकस करते हैं जिंदगी के अंदर, वो ग्रो करना शुरू करते हैं. तो जब भी आप इन नंबर्स पे जो आपकी जिंदगी में मौजूद है, इनके ऊपर आप जैसे ही फोकस करेंगे, तो सारी चीजें एक साथ बढ़नी शुरू हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी नंबर 1 है, 2 है, जो भी नंबर है, इनके साथ जब से आप कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, उसके पीछे वाले जो प्लैनेट्स है उसके ऊपर फोकस जाएगा आपका. एंड उसके बाद उसके पीछे जो देवता है उसके पीछे फोकस जाएगा, एंड धीरे धीरे करके वी विल फाइनली रीच बैक टू द सोर्स. दैट मींस देयर आर सम थिंग्स इन आवर सिस्टम व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू कनेक्ट अस विद द सोर्स. सो दिस इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट, मेक यू अंडरस्टैंड कितनी बड़ी एक पावर से, कितनी बड़ी एक लिनियज आप बिलोंग करते हो. और उसके बाद क्या, नाउ यूजिंग दिस न्यूमरोलॉजी यू विल एबल टू सर्व अदर्स अनकंडीशनली. क्या है कि इस दुनिया में जो भी चीज है ना, जो भी चीज आप देख रहे हो, चाहे ये सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, पानी, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड ईथर, मदर अर्थ, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. यहाँ पे कोई भी अपने लिए नहीं जी रहा है इस दुनिया के अंदर. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द पर्पस ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर आप ठीक से सीख पाओगे, तो मेन पर्पस इज टू हेल्प अदर्स अनकंडीशनली. दूसरों की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, बाय आवर गुड बिहेवियर, बाय आवर ओन कार्मास. तो हम दूसरों की कैसे मदद करेंगे, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ द कार्मास व्हिच आर एक्चुअली सराउंडिंग अस. देखिए हमें एक जन्म मिला है बिकॉज ऑफ कार्मा, दैट इज वेरी ट्रू. जैसे सर ने अभी बताया कि दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ है, फिर भी डिफरेंसेस कैसे आ रही जिंदगी के अंदर. तो वो भी जो सिमिलरिटी मिला है वो भी किसी कार्मा के रीजन की वजह से मिला है. बट once you understand numerology, उससे you will start helping others unconditionally. When you will start helping others, तो क्या होगा, what will happen? There is something called as a law of compensation in the universe. जितना आप दूसरों की मदद करेंगे इस सब्जेक्ट को सीखने के बाद, what will happen? The universe will return things back to you. आप अगर अच्छा करेंगे तो यूनिवर्स विल रिटर्न बैक गुड थिंग्स टू मी. तो आपकी वर्च्यूज इंक्रीज होनी शुरू होगी. तो जैसे ही आपकी वर्च्यूज इंक्रीज होनी शुरू होगी, आपकी सोल स्टैंडिंग विल स्टार्ट टू इंक्रीज.
और सोल स्टैंडिंग का क्या मतलब है? दुनिया में हर एक चीज जो आप एग्जिस्टेंस में देख रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर सोल स्टैंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मदर अर्थ की एक सोल स्टैंडिंग है। मदर अर्थ के अंदर जो भी प्लांट्स है, स्मॉल स्टोन्स है, उसकी एक सोल स्टैंडिंग है। ह्यूमन बींग्स की एक सोल स्टैंडिंग है। ह्यूमन बींग्स अगर हम सेंट्स की बात करें, हम ऋषि मुनियों की बात करें, उनकी सोल स्टैंडिंग नॉर्मल ह्यूमन बींग से थोड़ी अलग है। देवताओं की सोल स्टैंडिंग ऊपर है, उससे ऊपर हायर और सोल्स है। इस तरह से करके सोर्स हैज गॉट हायर सोल। तो जैसे ही आप दूसरों की मदद कर रहे हो इस सब्जेक्ट को यूज करके, अपने आप को जान के अलाइन कर रहे हो, तो आपकी धीरे धीरे करके आपकी कार्मिक फ्रीक्वेंसीज बढ़ेगी। और जैसे ही कार्मिक फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? व्हेन यू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, याद रखिए, जो भी चीज, जो भी घटनाएं आपकी जिंदगी में घट रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच यू आर एमिनेटिंग फ्रॉम योर सोल, हार्ट, माइंड एंड बॉडी। जैसे ही कार्मिकली आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे ही कार्मिकली आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली जिस जगह पे आप जिस फ्रीक्वेंसी में पहुंचेंगे उस तरह की इंसिडेंट्स आपके साथ घटनाएं जुड़ेंगी। तो जैसे ही आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी जस्ट नंबर्स का खेल नहीं है। न्यूमरोलॉजी से एक बहुत बड़ी लीनियज की खेल है। जैसे ही एक इंसान का जन्म होता है, उसी मोमेंट में, उसी क्षण, वो बहुत सारी ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है एक साथ। डिफरेंट एनर्जीज विल स्टार्ट टू मैनिफेस्ट। सो नंबर्स क्या करते हैं? नंबर्स इज वन ऑफ द डायमेंशन जिससे आप समझ सकते हो कि मेरे साथ कौन किस तरह की ऊर्जाएं जुड़ी हुई है, जिसको मैं बेहतरीन से बेहतरीन यूज करके मैं नॉट ओनली मैं अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाऊं, बट मैं अपने आसपास परिवर्तन लाऊं, और मैं अपने पूरी समाज में इस तरह के परिवर्तन लाऊं। एंड सो दैट जैसे ही मैं दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन लाना शुरू करूंगा, बाय लॉ ऑफ कंपेंसेशन ऑफ द यूनिवर्स, मेरी जिंदगी में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सो इट्स द बिगेस्ट स्पिरिचुअल टूल, एंड इससे आप अपनी जिंदगी की स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या है, कौन से प्लैनेट मौजूद है, कौन से प्लैनेट, जैसे अभी किसी ने मेंशन किया, अवेलेबल प्लैनेट्स एंड मिसिंग नंबर्स, कितनी बार एक नंबर मौजूद है, कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, तो कितनी बार एक नंबर आ रहा है, उससे कितनी स्ट्रेंथ बन रही है। कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो मिसिंग है, उससे कितनी वीकनेसेस बन रही है। लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर, लाइक नंबर 1 कितनी बार जिंदगी में आ रहा है, तो उससे कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोई स्पेशल नंबर है, लाइक नंबर 5, नंबर 8, अगर वो एकदम मिसिंग हो गया लाइफ में, तो क्या थ्रेट्स आ रही है। नंबर 9 अगर मिसिंग हो गया तो क्या थ्रेट्स आ सकती है जिंदगी के अंदर। तो आप ये सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हो इसके अंदर, एंड नेचर ऑफ इवेंट्स को समझ सकते हो। आपकी जिंदगी में कोई भी इवेंट्स हो रही है आपकी जिंदगी में, आप कोई कंपनी के मालिक हो, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो एक पर्टिकुलर डेट में, या उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, तो वो किस तरह की एनर्जीज, किस तरह की वाइब्रेशंस अपने साथ लेके आ रहा है, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो, उसको भी एनालाइज। रिमेंबर कीजिए, कोई भी घटना है जो आपकी जिंदगी में घट रही है, वो न्यूमरोलॉजिकल इवेंट्स ला रही है, वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी जिंदगी में ला रही है, वो कुछ ऊर्जा ला रही है। इसीलिए हम मुहूर्त की बात करते हैं। हम क्यों मुहूर्त देखते हैं? क्योंकि मुहूर्त में हमें ये पता चलता है कि इस मुहूर्त में अगर हम कोई काम करेंगे तो बेटर अलाइनमेंट, बेटर एनर्जीज हमारे साथ मौजूद है। तो अगर घर में शादी हो रही है तो 2 डिफरेंट फैमिलीज की एनर्जीज आपके साथ जुड़ रही है। घर में आप एक पेट ला रहे हो तो एक पेट, एक न्यूमरोलॉजिकल अलाइनमेंट हो रही है। आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है, मित्र है, वो किसी तरह के एनर्जीज आपके साथ ला रहे हैं। तो आप कोई नए घर में जा रहे हो, घर का नंबर क्या है, तो ऑल दिस थिंग्स ब्रिंग्स अ न्यू काइंड ऑफ एन एनर्जी विथ यू, एंड दैट इज व्हाई एवरी इवेंट हैज अ न्यूमरोलॉजी। सो अगर आप आज के बाद 2 चीजें जस्ट लेके जाइए इस वर्कशॉप्स के अंदर। एक, बिहाइंड एवरी नंबर्स आर हायर एनर्जीज। आप उसको देवता बोल सकते हो, या हायर एनर्जी जो आपके साथ 24 घंटे जुड़े हैं, आपके साथ 24 घंटे करते हैं। अगर आप उस पर फोकस कर सकते हो, उस नंबर्स पे, अगर उस नंबर्स को आप समझ सकते हो, तो हो सकती है आपकी एनर्जीज एंड ऊर्जा ज्यादा बढ़े। और दूसरी चीज है, एवरी इवेंट हैज न्यूमरोलॉजी। बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द डेट्स यू चूज, बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द कंपनी नेम्स यू कीप, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज लॉन्च करते हैं, अपने आप को पता चलता है कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि द काइंड ऑफ ग्राफोलॉजी, काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजिकल वाइब्रेशंस, द काइंड ऑफ कवाला थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग, द वाइब्रेशंस व्हिच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम देयर मे नॉट बी गुड, उसकी फुएलिंग नहीं है। So this is all about understanding. So now let us start to understand. मैं चाहूंगा अगर आप लोगों के पास कॉपी किताब हो तो आप लोग 2 काम कर लीजिए। अपने कॉपी में अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक मोर ऑफ नंबर्स टुडे। मैं नंबर्स के बारे में ज्यादा बताऊंगा आपको, तो नंबर्स की पैरामीटर्स के बारे में ज्यादा बताऊंगा। तो आप देख लीजिए कि किस तरह की ऊर्जा आपके पास मौजूद है और किस तरह की ऊर्जा आपके पास मौजूद नहीं है। सो बट बिफोर दैट, let me just give you a little bifurcation so that clarity can come in that case. So as I said,
So every event has releases vibration in this universe. So that means अगर हर एक चीज में न्यूमरोलॉजी है तो हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशन है, तो अपनी एक ऊर्जा है. So everything in this world, जो भी चीज आप देख रहे हो आसपास, हर एक चीज से एक वाइब्रेशंस निकलती है. Whether it is a visible or an invisible world, both releases a lot of vibrations. And so what are the vibrations available with us? जब मैं invisible की बात करता हूँ तो invisible में हमारे पास क्या है? हमारे पास the most important thing is your name. किस तरह से आपको पुकारा जाता है, कैसे आपको पेरेंट्स पुकारते हैं, कैसे आपको टीचर्स बुलाते हैं, कैसे आपको प्रोफेशनली बुलाया जाता है, किस नाम को लोग ज्यादा वो देते हैं. तो हर एक नाम के साथ कुछ प्लैनेट्स एंड नंबर्स एक्टिवेट होना शुरू किया. इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट इज योर डेट ऑफ बर्थ. सो डेट ऑफ बर्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस दिन आप पैदा हुए हो उस दिन कुछ नंबर्स ने एक फ्लैश दिया है आपकी जिंदगी के अंदर. एंड फ्लैश देने के बाद दे हैव एक्चुअली टेकन सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू. आपकी जिंदगी में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आए हैं. So your name, there are various kinds of number systems in mathematics. So जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम. 1 to 9 हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर. 0 यूज नहीं होता है बिकॉज 0 इज यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी फॉर लग्न. बट यहाँ पे 1 to 9 यूज होता है. बट जो नेमोलॉजी है, द सब्जेक्ट ऑफ नेमोलॉजी, इसमें बाइनरी सिस्टम्स यूज होती हैं. बाइनरी सिस्टम, इट मे बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू एट दिस मोमेंट, बट यस, बाइनरी सिस्टम इज जस्ट बेस्ड ऑन 0 and 1. दुनिया में जितनी तरह की मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जितनी तरह की चीजें लोग अचीव करते हैं, जितनी तरह की चीजें परमिशन दिया जाता है हेवन से, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन 0 and 1. होगा या नहीं होगा, द होल कंप्यूटर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 0 and 1. सो आपकी नेम के अंदर क्या पावर है? व्हाट इज द पावर इन योर नेम? दैट इज 0 and 1. नाम के अंदर कितना फ्यूल होगा, वो नाम कितना आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसकी रेजोनेंस कैसी है, उसके ऊपर आपका नाम चलता है. एंड किस तरह की साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है वो. That is the power in your name. So these are the two most important thing is your name and your date of birth. And जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में हम क्या देखते हैं? देखिए, डेट है जैसे आपका डे हो गया, 1 से लेके 31 तक नंबर हो सकते हैं, फरवरी 28 दिन में हो. Then there is a month number, then there is a year number. Okay, so this is the most important numbers in your chart. देन हम जब इनकी एडिशंस करते रहते हैं तो एडिशंस करने के बाद भी हमें कुछ नंबर्स मिलता है, बिकॉज हमें फाइनली 0, हमें डेसिमल्स में पहुंचना होता है. बिकॉज न्यूमरोलॉजी बेसिकली फॉलोज द बेसिक सिस्टम, फॉलोज 0 to 9 नंबर्स, एंड 9 के 1 फिर से 1 आना शुरू करते हैं. सो वी कीप ऑन लीनियर एडिंग द नंबर्स टिल वी रीच 1 single digit. So this whole system of numerology is based on available numbers and missing numbers. तो ये अवेलेबल नंबर्स और मिसिंग नंबर्स से क्या होता है? तो हमें 3 चीजें मिलती है जनरली. द 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स. सारे नंबर्स आर इंपॉर्टेंट. जो भी नंबर आपके पास है, इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन, इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ एनर्जी, इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग्स, इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ अ देवता इन योर लाइफ. बट देयर आर 3 things we need to find out. One is called as a life path number. So आपका पहला नंबर क्या है? That is a life path number. Second, which is important, is the destiny number. आपका सोल क्या करने के लिए आया है इस धरती के अंदर? What is your destiny? And the third is called as an activator number. Now, activator number क्या होता है कि आप देखेंगे अपनी इंसिडेंट्स लाइफ के अंदर कि जब भी कोई घटनाएं घटती है आपके जीवन के अंदर, कुछ भी तरह से चीजें चल रही है, या कोई किसी तरह से आपको बुला रहा है, तो कभी ना कभी लाइफ के अंदर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा प्लेनेट होता है जो आपको हमेशा मदद करते रहता है, अपार्ट फ्रॉम इवन दिस 2 नंबर. तो द फन ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इज टू एक्चुअली फाइंड आउट दिस activator number. Activator number has a lot of principles and theories, but life path number, destiny number तो बहुत easily मिल जाती है. But activator number के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. Events देखे जाते हैं, financial events देखे जाते हैं, relationship events देखे जाते हैं, नाम का vibrations देखा जाता है, किस नाम से सबसे ज्यादा लाइफ में उन्नति हुई है. All these things has to be seen. So basically the whole crux of is this trinity. जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की बात करते हैं, so this is actually this 3 trinity: life path, destiny number and activator number. So sometimes the life path number, destiny, activator number can overlap also. Same भी हो सकता है, different भी हो सकता है, but can send me link for further suggestions. Sure sir, जो भी हमारा होगा, आप जुड़े हुए हो शायद हमारे साथ. आई डोंट नो आप कैसे आए हो, किस तरह से मिला है, बिकॉज हमने कुछ डिफरेंट जगह पे दिया था. सो वी विल डेफिनेटली सेंड यू अबाउट दिस, अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द फन, बट नाउ वी आर गोइंग टू गो टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट नंबर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन योर चार्ट. आपके चार्ट में कौन कौन से एनर्जीज अवेलेबल है,
देखिए चीजों को ना सिंपल कीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या है, आप सिंपल तरह से चीजों को करिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत सारी चीजें बता सकता है, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज, बट हमारी जिंदगी बहुत फास्ट है। हमारी जिंदगी इस वी आर इन अ वेरी हाई पेस्ड वर्ल्ड, वी आर पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन एट द मोमेंट, मदर अर्थ इज पासिंग। हम देख रहे हैं कोरोना वायरस से बहुत सारी चीजें हो रही है, इकोनॉमिक अप डाउन हो रही है, रिसेशन हो रही है, तो वी मे हैव सम लिमिटेड टाइम विद इन अस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सो एट द मोमेंट वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड द क्रक्स इन द फास्टर वे। सो व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड इज दैट आपके पास जो भी चीजें मौजूद है, जो भी नंबर्स मौजूद है, उसको सिंपल तरह से समझिए, उसकी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक समझिए। कैरेक्टरिस्टिक आपके आंखों के सामने हो सकती है। इफ यू सीइंग अ सन, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट सन इज। अगर मून देख रहे हो तो मून को समझिए, मून क्या चीज है। तो अगर इस तरह से चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, चीजों की एनालिसिस ज्यादा अच्छी तरह से होगी। सो नाउ if this is clear, let us go to understanding the different numbers which is available in our life. Okay, so if you have a diary, wonderful. अगर आपके पास डायरी है, नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगा बहुत इजीली चीजों को समझाने के लिए। Sir, just one question, Hitesh here. हाँ हितेश जी बताइए। I missed that part which you said the first digit of our birth date is what is called, it's a life path number. हाँ, right? डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंग कहते हैं। कोई ड्राइवर नंबर Correct. बोलता है, कोई कंडक्टर नंबर बोलता है। तो फर्स्ट इज Okay. समथिंग जिससे आपको रिकॉग्निशन मिलती है। फर्स्ट इज ब्रिंग्स अबाउट अ कैरेक्टर, जिससे लोगों को Okay. पता चलता है आप कौन हो। धीरे Okay. धीरे जैसे सोल अपलिफ्ट होना शुरू करता है ना, तो उसकी जो सेकेंडरी नंबर्स एंड टर्शियरी नंबर स्टार्ट्स टू गेट एक्टिवेटेड, बिकॉज़ सोल के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। सोल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। तो जब हम सबको ऐड करना शुरू करते हैं सारे डिजिट, तो वी नीड which is called as the conductor number. तो कंडक्टर नंबर, तो कंडक्टर नंबर को सोल नंबर, डेस्टिनी नंबर, डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम से बोलते हैं, बट हमारा पर्पस इज टू अंडरस्टैंड कि वो आपका बेसिकली आपकी डेस्टिनी क्या है, क्या पावर्स, क्या एक्सपीरियंस लेके आप आए हो इस दुनिया के अंदर करने के लिए, वो बताता है वो चीज। और एक थर्ड नंबर मैंने बताया एक्टिवेटर नंबर। तो आप एक धीरे धीरे कभी स्टडी करना, आपकी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं घट रही है ना, कभी सपोज किसी ने आपको अचानक से कैश दे दिया, आप उस दिन का ना नंबर लिख के रखो, ऐसे करके ना अपनी चार्ट्स ड्रॉ करना शुरू करो। तो आप देखो कि एक प्लैनेट है जो आपको ना, अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्लैनेट्स, दीज आर बेसिकली लकी प्लैनेट्स फॉर अस, बोला जाता है ये नंबर्स लकी होते हैं हमारे। बट क्या होता है कि कुछ एक ऐसा भी और थर्ड नंबर हो सकता है जो आपको कभी ना कभी जिंदगी में किसी न किसी तरह से हेल्प करता है। उसकी टेक्निक्स है फाइंड करने के लिए। So there's a complicated techniques also, but the basic is that you have to be practicing with that. आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि एक ऐसा भी नंबर होता है आपका जो एक ट्रिनिटी कंप्लीट होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की ट्रिनिटी बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजी में। So life path number or driver number, conductor number, your destiny of the soul number and the activator number. The three things plays a major role in your life. So it is always thing to you must understand them. जैसे ही आप understand करोगे, your focus will start to increase. When your focus will start to increase, more blessing you will start to get in your life. That is a Okay, clear, sir. Thank you. Thank you. Most welcome. So, so आपने अपना date of birth लिख लिया. It doesn't take much more time. Just be aware of the numbers at the moment. So, जैसे हम decimal system लेके काम कर रहे हैं, 0 to 9 numbers decimal systems में है, तो 0 हम इसमें नहीं लेते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में 0 लेते हैं। तो 0 is called as the लग्ना। लग्ना मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ ज़ोडिएकल कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इसको ascendant भी बोलते हैं। What is ascendant means? Your connection with the source, मतलब जहां से चीजों की शुरुआत होती है आपकी जिंदगी के अंदर। That is called the 0 point in the astrological chart. पर न्यूमरोलॉजी में हम अभी 0 में उतना ज्यादा एंटर नहीं किया। We start with the 1. So 1 is represent sun. तो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर कुछ भी चीज आपको न्यूमरोलॉजी में समझ में आएगा, डोंट गो टू देवन, जंप ऑन टू द देवतास आल्सो, बट रिमेन, दो आई विल टॉक अबाउट देवतास एट द मोमेंट, बट आपको अगर कुछ भी चीज समझना है, जस्ट ऑब्जर्व सन। सन क्या करते हैं? इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ही इज अ लीडर, उस सब चीज को डिसिप्लिन में रखते हैं। ही इज लाइक अ फादर फिगर, फादर्स एनर्जी टू द होल सिस्टम, सारी चीज के एक्चुअली सोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, सोल की बर्थ के लिए सन होते हैं। So like that you can understand the 1,000 things. He gives light to people's life. He gives light to everything. अंधेरे से रोशनी में लेके आते हैं. Understand like that. But basically हम क्या कहते हैं कि कुछ भी चीज ब्रह्मांड में जैसी आप देखते हो, जिस भी चीज की सृष्टि होती है, उसके लिए दो एनर्जीज की जरूरत होती है हमेशा। एक है फादर्स एनर्जी, एक है मदर्स एनर्जी। आप लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन करोगे या हमारी सृष्टि होती है तो एक माँ होती है, एक फादर होती है। अगर आप सपोज कोई भी चीज लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो व्हाट यू रिक्वायर एन एनर्जी व्हिच इज अ थॉट प्रोसेस एंड एन एक्शन। तो व्हेन थॉट्स एंड एक्शंस कंबाइन टुगेदर, एक चीजों की सृष्टि होती है आपकी जिंदगी के अंदर। तो सन रिप्रेजेंट दैट फादर्स एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी को थर्स्ट देने के लिए जो चीज होती है जिंदगी के अंदर, दैट कम्स फ्रॉम द सन।
So it is a number of creation. कोई भी चीज को create करने के लिए this is one of the best number. It has many qualities, but one of the qualities is a leadership quality, light giving quality, direction giving quality. मतलब आपके पास पूरी टीम है जिसके पास भी फर्स्ट में मतलब डेट ऑफ बर्थ में एंड सोल नंबर में अगर नंबर 1 है तो बंदा कहीं ना कहीं ग्रुप के अंदर, दोस्तों के अंदर, ऑफिस के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आएगा. उसके पास वो सारी चीजें होंगी, आंसर्स होगी जो कोई भी प्रॉब्लम के अंदर एक लाइट थ्रो आउट कर सकता है. So that is the purpose of the sun. And what is the devata behind the sun? So there is the devata behind the sun, which is called as a Vahani. वाहनी क्या करते हैं, जितनी भी प्रेयर्स होती हैं, जितनी भी हमारी इंटेंशंस होती हैं इस दुनिया के अंदर, हम जो भी इंटेंट करते हैं तो वाहनी टेक्स इट टू द सन. जैसे आदित्य सन हमारे, अगर एस्ट्रोलॉजी की अब थोड़ी सी बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे 12 आदित्य हैं. 12 आदित्य 12 भावों में ब्लेसिंग्स देते हैं. दे आर द ह्यूज गिवर. इसीलिए हमारे शास्त्रों में सूर्य पूजा की बहुत बड़ी महत्व दी गई है. सूर्य वर्शिप, सूर्य नमस्कार, ह्यूज पावरफुल, बिकॉज इट इज बिलीव दैट सन इज द गिवर ऑफ एवरीथिंग. बट जब सन के पीछे, तो सन तो हम 3 डायमेंशन में देख रहे हैं ना कि हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, बट अगर हम मल्टी डायमेंशन की बात करें तो उस डायमेंशन में और एक चीज ओपन होती है जिसको बोलते हैं वाहनी. वाहनी इज द देवी विच टेक्स द एनर्जी, जो भी आप प्रेयर करते हो, फ्रॉम द सन टू द सोर्स एंड बैक टू द सन, बैक टू द अर्थ, इस लोका में लेके आते हैं. सो वाहनी इज द देवी विच इज वर्शिप फॉर द सन. सेकेंड इज नंबर 2. नंबर 2 क्या है? मून. सो मैंने बोला कोई भी चीज सृष्टि करने के लिए 2 एनर्जीज की जरूरत होती है, एक सन एंड मून. मून प्रोवाइड्स दैट मदरली एनर्जी, द केयरिंग एनर्जीज फॉर एनीथिंग. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर द रिलेशनशिप. जब भी कोई चीज से आप रिलेट करते हो, कोई भी चीज रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं, so the relation, the caring energies comes from the moon. So people having this moon number generally are very gentle, very diplomatic, वो forgiving nature के होते हैं, and they understand others. Generally इस तरह के लोगों को देखा गया है, बहुत सारे काम करेंगे, ऑफिस में बहुत सारे काम करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, वो क्रेडिट नहीं लेंगे. जैसे घर में माँ होती है ना, माँ बच्चों के लिए काम करती है, कभी क्रेडिट नहीं लेती पीछे से. इस तरह के लोगों की नेचर आपको समझ में आएगा. They don't take credit for the others, and they are generally very understanding. जैसे एक mother understand his son and कैसा कौन बेटा कैसा काम कर रहा है, किस तरह के नेचर है. Similarly, these people have a general understanding and knowledge about other people, and they have very good intuition. These people have intuition, उनकी emotional energy, because the emotion की अगर आप बात करें, मन की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में सारी दशा, देयर आर 44 डिफरेंट काइंड्स ऑफ दशास की बात की गई है एस्ट्रोलॉजी के अंदर. बट जो विंशोत्तरी दशा है, दैट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मून. दैट मींस दशाएं हमारे माइंड को इफेक्ट करती है. सो एवरीथिंग इज एक्चुअली फ्रॉम द मून. मून इज द ग्रेटेस्ट रिसीवर, सबसे ग्रेटेस्ट रिसीवर एंड ग्रेटेस्ट रिफ्लेक्टर. सो these people generally have a very high level intuition, imagination, intuition and motherly energy inside them. So like people having a moon in their first and the soul level, soul powers. And जितनी भी healing herbs है दुनिया के अंदर, healing energies हो रही हैं या healing system चल रही है, उसके पीछे moon is responsible. The caring part, the healing part of the moon. And the devta behind this is called as Ambu. Ambu is the water element, or Ambu is the mother nature भी बोल सकते हो, और Ambu is like the mother goddess of the universe. So the devta behind this number 2 is Ambu. Number 3 is a very important number in the chart. It is represented by the planet Jupiter. And Jupiter क्या करते हैं? It's a support system basically. Life में life की support system. जिनके पास भी जुपिटर का नंबर होता है, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरह से सपोर्ट मिलता है. एंड दीज पीपल आर फुल ऑफ विजडम. दीज पीपल हैव लॉट ऑफ विजडम्स विद देमसेल्फ. एंड इनकी हेल्थ अगर बैलेंस में रहे ये नंबर, इनकी हेल्थ काफी अच्छी होती है, बेहतरीन हेल्थ होते हैं इन लोगों की. एंड इट्स ऑल्सो अ नंबर ऑफ वैल्यू. वैल्यू का मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में आप जैसे काम कर रहे हो कहीं पे, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, और आपको जिंदगी में वैल्यू नहीं मिल रहा, तो सी जुपिटर कि आपका जुपिटर कैसा है, आपका ये नंबर 3 कैसा है चार्ट के अंदर. एंड सी कोई भी चीज के, कोई भी गाड़ी का 3 लाख है या रेट है या 23 लाख प्राइसिंग है, तो द प्राइसिंग, द टैग प्राइसिंग कम्स फ्रॉम मरकरी, बट उस गाड़ी का प्राइस कितना होगा इज डिसाइडेड बाय जुपिटर. सो अगर आपको लाइफ में, खुद के लाइफ में वैल्यू चाहिए, तो स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू अदर पीपल्स. आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू देम, रेस्पेक्ट देम, रिगार्ड देम, एंड यू विल सी मैजिक विल हैपन, बिकॉज़ द होल न्यूमरोलॉजी इज लॉ ऑफ karma. What you do comes back to with your compound interest. If you have unbalanced number, so I'm giving you solution right away. तो आपको अगर solution चाहिए तो मैं एक बहुत major solution आपके साथ share कर रहा हूँ. अगर आपको life में कुछ भी चाहिए तो वो जो चीज आपके पास नहीं है, start giving it to other people and you will feel the change which is happening in your life. And social skill, ये लोगों के पास social skills बहुत ज्यादा होते हैं. अगर society में अगर they are friend of somebody, तो किसी की
फ्रेंड को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो झट से पहले इनको कॉल जाते हैं कि वी हैव दिस इशू, व्हाई डोंट यू कम, वी विल डिस्कस. सो दिस पीपल हैव वेरी गुड social skills. There are lot of other characteristics also, but these are the basic things which I am trying to tell you. Remember, Jupiter is for wisdom. जितनी भी knowledge है, astrology की knowledge, the knowledge world, legal knowledge, this all comes from the Jupiter. So Jupiter is responsible for all the wisdom in human life and other aspect of life. And the devata behind this is Indra. So Indra, and Indra is one of the devatas. जैसे कोई actually वैदिक में जो मंदिर वगैरह बनाई जाती है, उस वैदिक में ना हम दिक्पाल्स बिठाते, तो वन ऑफ द दिक्पाल इज इंद्र आल्सो. सो वन ऑफ द, बिकॉज इंद्र अगर नहीं होंगे तो उसके अंदर एनर्जीज नहीं पहुंचेगी ठीक से. सो इंद्र इज द पर्सन. अनदर इंटरेस्टिंग नंबर इज नंबर 4, जिसको राहु के साथ इसकी बोला जाता है दिस इज अ राहु नंबर, और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर इसको यूरेनस के साथ जोड़ते हैं. सो इट्स आल्सो basically it's a number of we say luck and fortune, yeah, obviously, but let me just quickly give you what is Rahu. पे लोग राहु के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां रखते हैं, एंड राहु काल चल रहा है, आपका राहु दशा शुरू हो गया है, आपकी ये चीज है, वो है चीज, व्हाटएवर थिंग. बट रिमेंबर व्हाट इज राहु. मैंने ऊपर अभी बोला है कि कोई भी एनर्जीज, कुछ चीज मैनिफेस्ट करने के लिए धरती में 2 तरह की एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी. सो 2 तरह की एनर्जीज, द सोलर एनर्जी एंड द लूनर एनर्जी. So as a student of numerologist, आपको ये चीज समझना है राहु क्या चीज है. राहु इज नॉट ए प्लैनेट. राहु क्या होता है कि अर्थ है, अर्थ के चारों ओर, सो बेसिकली साइंस क्या बोलता है कि सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हेलियोसेंट्रिसिटी. बट हम जब अर्थ से देखते हैं तो एक्चुअली हमें क्या दिखाई देता है, अर्थ के चारों ओर सन घूम रहा है, और अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, चंद्रमा. तो सन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सोलर पावर, द फादरली एनर्जी. एंड मून क्या रिप्रेजेंट करता है, मन का कारक है मून. सो नंबर 2. सो अब ये दोनों एक्सेस थोड़े से एंगुलर में है. जस्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड एज द राहु पॉइंट. इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट इन द यूनिवर्स, बट इसकी बहुत बड़ी एक साइंस है इसके पीछे, कि जब भी सोल, हमारे कोई सोल जन्म लेता है, तो this soul is being pulled by Rahu, the Rahu point, and it gets enter into this loka, the earth loka, the bhuloka. और इसके ठीक 180 degree opposite में is the Ketu point. Now Rahu is responsible for the birth and Ketu is responsible for the moksha. तो केतु को मोक्षा कारका बोला जा रहा है. We will talk about केतु अभी नीचे. So Rahu is supposed to give you that illusion. Rahu is supposed to give you that vibration, the power to be there in the earth. So it's a very, very important point in your chart, very, very important number in your chart. Yes, Rahu brings a lot of luck and fortune for you. And the people who have this prominent Rahu in the date and the soul number, they are generally very, very careful people. And they are different from the masses. Unki thought process थोड़ी अलग होती है masses में. And initially stages, they show a kind of a little laziness and but struggle, but eventually देखा गया है जब उनको ये समझ में आती है अपनी सिस्टम, तो सडनली राइज, लाइफ में बहुत ज्यादा राइज होता है उनकी जिंदगी के अंदर. बहुत केसेस है, वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ केसेस इन दिस थिंग. And the devata, devi behind this number is, there are 2 devis which are worshipped. One devi to pacify the ill effect of Rahu is माँ सरस्वती, हमारे इसमें बोला गया. The second is Durga, छिन्नमस्ता बेसिकली. अगर नव दुर्गा की बात करें तो दुर्गा क्रिएट्स, जो राहु जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं दिमाग के अंदर, बिकॉज फॉर द सोल टू बी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, सोल को इस दुनिया में रोकने के लिए. बट इस दुनिया में है क्या, जब सोल घुसते हैं तो प्रॉब्लम्स ही तो दिखते हैं, चैलेंजेस से दिखते हैं शुरू से लेकर. बट उस सोल को रोकने के लिए जो इल्यूशन क्रिएट किया जाता है, उस इल्यूशन इज अ राहु इल्यूशन. एंड वो इल्यूशन कभी कभी हमारी जिंदगी में सरफेस कर जाता है, कुछ चीज है नहीं, हम उसको देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं. तो बोला जाता है, माना जाता है कि अगर इफ यू स्टार्ट वर्शिपिंग दुर्गा, तो दुर्गा क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ दुर्गा अराउंड द पर्सन, सो दैट द इल्यूजनरी इफेक्ट्स ऑफ दिस राहु, जो कि एक असुरों के सामने वो तुलना की जाती है, तो उसकी इफेक्ट थोड़ी सी नलीफाई कर सकते हैं. तो अगर आपका राहु में गेट खुल रहा है, आपके घर राहु डायरेक्शन में है, तो आपको दुर्गा मंत्र का चांट करना चाहिए. अगर राहु दशा आ रही है तो दुर्गा मंत्र का चांट करना चाहिए, या सरस्वती मंत्र का आप चांट कीजिए. तो राहु की इफेक्ट थोड़ी सी, आपकी समझ जो है वो थोड़ी सी, जो मून विल बिकम एक्टिव एंड द राहु विल बिकम सबसाइड डाउन. दैट इज द पर्पस. Another 2 important numbers are number 5 and number 6. Now number 5 को इसीलिए important number माना जा रहा है, जब हम न्यूमरोस्कोप करते हैं तो हम देखते हैं कि number 5 is the central number. It is the central number of the axis, so it is a number of stability. And बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो they try to bring it to number 5. अगर
Yes, sir. Khatu Shyamji is Vishnu. I'm going to talk about that. So Khatu Shyamji is Krishna consciousness which is there. तो Khatu Shyamji तो सब में है. तो Khatu Shyamji is in moon, चंद्रमा. तो अगर देखोगे Khatu Shyamji is in Vishnu. Khatu Shyamji is the कलयुग के सबसे power soul है. तो उनका दर्शन से तो पूरी complete transformation हो जाती है. Thank you for sharing. Thank you so much. So राहु तो definitely होगा pacify. But अगर आप अभी हम विष्णु की बात करेंगे तो remove the poison from your body. Khatu Shyamji is amazing. आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो नहीं रही, कोई बंदा स्टक है, जाइए खाटू श्याम की. आपकी जो वीकनेसेस है, कॉन्फिडेंस है लाइफ में ही उनकी आंखों में देखिए. ही विल गिव यू द मैसिव कॉन्फिडेंस इनसाइड यू एंड मेनी थिंग्स विल टर्न ओवर. थैंक यू फॉर शेयरिंग खाटू श्याम दिस नेम. गॉड ब्लेस यू. खाटू श्याम जी ब्लेस यू बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. So Mercury, we are talking about Mercury. So Mercury brings a kind of a stability माना जाता है जिंदगी के अंदर. न्यूमरोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि Mercury brings, though it is unstable, खुद बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत इसकी नेचर बड़ी वाइब्रेटिंग होती है, but somehow this vibratory nature brings a kind of a stability in your फाइनेंशियल सिचुएशन. पीपल हैविंग नंबर 5 वो किसी तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल जाते हैं किसी भी इशू से. पावर ऑफ इंटेलिजेंस स्पीच, ये लोग बहुत अच्छी तरह से बात बोल सकते हैं. इसलिए मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच. कहीं मरकरी के साथ कोई और, आई मीन एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाता है, मरकरी के साथ कुछ और नंबर तो जुड़ा नहीं है तो उसकी स्पीच उस तरह से आनी शुरू हो जाती है. एंड दीज पीपल आर कनेक्टेड विद क्विक डिसीजन. बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वर्सेटाइल, प्रोग्रेसिव, स्मार्ट होते हैं दीज पीपल, जिनके नंबर 5 is in the prime number or in the on the soul level number. So the devata behind is Vishnu. Mercury actually has been related to a kind of a wish also, because Mercury poison बोला जाता है. तो the devata behind is Vishnu. So जो पराशर जी ने जो कहा है कि विष्णु की अगर हम डेली, इसीलिए कोई भी पूजा जब शुरू होता है उस पूजा को सक्सेसफुल बनाने के लिए विष्णु जी की पहले नाम लिया जाता है. So there are different devatas also, but Vishnu is one of the devatas जिसका नाम लेने से this thing number 5 gets pacified. So number 6 is Venus and Shukra के साथ there is a relationship between Shukra. Very important number. This is an absolutely powerful number. So it brings, it is related to comfort. It is related to new ideas and for startups. अगर आप कोई startup open कर रहे हो, so startup में आपके पास क्या आइडियाज है, नई चीजें ढूंढने की क्षमता है, इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, इमेजिनेशन पावर. मतलब इवन इससे क्या होता है, कभी कभी डेप्थ भी आ जाता है लाइफ के अंदर. तो डेप्थ के लिए भी नंबर 6 अगर ज्यादा आ रहा है आपकी जिंदगी में, डेप्थ भी बढ़ सकते हैं. बट दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि आपकी सोच बहुत आगे, यू वांट टू डू समथिंग वेरी वेरी बिग इन योर लाइफ एंड दैट्स व्हाई यू टेक लोन्स एंड ऑल्सो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बट हियर लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ दिस. सो स्टार्टअप्स के लिए आपकी नई आइडियाज जो आपके दिमाग में आएंगे, सो आपके पास कितनी आइडियाज इस तरह की नई, किस तरह से आप सोच सकते हो, ऑल दिस थिंग्स कम्स फ्रॉम नंबर 6. शक्ति कॉन्शियसनेस, दिस नंबर 6 has some sort of शक्ति कॉन्शियसनेस inside you. So इसीलिए जब बेबीलोनियन वगैरह जब युद्ध करने जाते थे तो they used to see the position of the Venus with them so that they can do a kind of a war. It brings different kinds of sparks in your life. जो sparks लाना है, इसीलिए diamond is one of the stones जिसको माना गया नंबर 6 का, diamond and opal, they have a lot of sparks with them and they have magnetic personality. तो जब भी मैंने जो भी फिल्म स्टार वगैरह है तो उनकी जब मैंने चार्ट की है तो I first see that whether they have got a number 6 की क्या क्वालिटीज आ रही है उसके साथ. तो I have even changed some people's name also and then I have actually tried to find out what is the position of the number, because number 6 has that kind of a magnetic personality, magnetic pull. ये एक तरह का spark create करता है and it is very very important for your life. Number 7 is represented by Ketu and Western astrologer इसको Neptune के साथ तो वो करते हैं, relate करते हैं. So जैसा as I said that Rahu is responsible for getting the soul in this earth, Ketu is responsible for the moksha. His responsibility is that you finish off your dharma in this earth and you now get then your soul will go out of this earth. So that is why that Ketu gives you a lot of intuitive ability. जहाँ पे आपकी intuition, the soul power, soul के पास क्या knowledges हैं उसको जागृत करता है Ketu, your intuitive abilities. So it gives you an ability of deep thinking and deep knowledge on any subject, ताकि आप उस subject में जाके, whether you are working in spirituality or any other thing, or you are a scientist, you can go very deeper so that you can take out your blueprint further and you can help yourself, help mankind, and you can finish off your karma dharma in this world. And it has some sort of a foreign connection. There are two kinds of foreign connection which happens. Foreign connection by number 6, जहाँ पे comfort के लिए आप दूसरे country में जा रहे हैं,
और एक फॉरेन कनेक्शन होता है जहाँ पे यू गो फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, गेटिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ द Ketu gives you that number, and these people are interested in science and metaphysical activity. So that is Ketu. So again, Durga can be worshipped for Ketu also, and Dhumavati is the Devi, the Devi which is mystical Devi, which gives you a lot of mysteries attached with these sciences, and it can give a lot of things. So this has ये सबकी ना एक पैटर्न है. आप अगर ध्यान से देखो, number 1, 2, 3, these are the number responsible for birth of the person. Basically solar power and the lunar power आके आपका जन्म हुआ है. अगर आप इसकी फ्लो देखो, नंबर 3 से सारी एनर्जीज एंड विजडम्स मिल रही है जहां से इंसान चल सकता है लाइफ में. नंबर 4 क्या क्रिएट करता है? नंबर 4 इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ expansive illusion for that person so that the soul remains in this earth. वो यहाँ पे रहे. Number 5 क्या है? Number 5 is taking you to a stability. Now आप यहाँ पे आके एक choice मिलती है कि where exactly the soul will go, whether he will go towards a self comfort or he will be going for the welfare of the other people. अपने खुद के स्वार्थ के लिए काम करेगा या दूसरों के लिए मदद के लिए काम करेगा. अगर उसके ब्लूप्रिंट में है कि उसको दूसरों के लिए मदद करनी है, दूसरों के लिए जीना है, तो नंबर 7 जैसी आएगा ना, उसकी जिंदगी में उथल पुथल ला देगा. इसलिए केतु की दशा आती है जब तब इट्स पेनफुल दशा कम्स बिकॉज the person is not aware of what exactly he has to do, and he starts destroying everything. Business बंद कर दिया, कहीं disease आ गई, कहाँ पे कुछ आ गई, so that he has to uplift himself. अपनी energies को उस direction में लेके जाए जिस direction में उसकी जिंदगी को जाना है. और उसके बाद आता है another देवता which is called as number 8, which is Saturn. सैटर्न जी का नाम सुनते ही हम सब लोगों का प्रॉब्लम आता है. शनि की दशा चल रही है, बहुत पेन. इट इज एक्चुअली अ वेरी पेनफुल दशा Saturn, because it is a karmic number. आपने जितना भी काम किया है इस जीवन में, उसमें इसका एक हिसाब किताब, एक लेखा जोखा ये करते हैं, and that is why it is a very karmic number. But it is numerology में it is also number of abundance, because शनि का दूसरा नाम सोना है. अब सोना क्यों है? अगर शनि इतना कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि शनि gives a lot of understanding of what is right and wrong. So Shani even हर एक number, but it is number 8, like आपकी पान अपान ऊर्जा. It's like it helps you understand the balance between what is deeper good for you and for good of the others. It is like a yogi planet. So अगर आप जिंदगी में शॉर्टकट नहीं लोगे, अगर हार्ड वर्क करोगे और अपनी राइट जो चीज आपको करनी है अगर राइट ट्रैक में करोगे, दो Saturn people sometimes it has been found that they are a little bit greedy, but अगर आप ठीक से करोगे सारी चीजें, तो you will see that Saturn blesses you beyond comprehension. जब Saturn की blessing मिलती है तो बोलते हैं ना, सोना उगने लगता है. अब देखिएगा कभी अपने आसपास के कोई ज्वेलर्स वगैरह हैं, और मतलब जो जिनके अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं नीचे, बड़े बड़े ज्वेलर्स की बात कर रहा हूँ. See the position of the Saturn in their chart and you will understand that कहीं ना कहीं एक कार्मिक उनको ब्लेसिंग मिली हुई है जिंदगी के अंदर जिसके. सो रिमेंबर, इफ Saturn comes after 7 के, तो जैसी Saturn की दशा या नंबर्स में कुछ दशा आ रही है, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि अभी आपको कर्म फल मिलने वाला है, कि आपने अभी तक जो भी कुछ किया है अपनी जिंदगी के अंदर, उसका एक लेखा जोखा हिसाब मिलेगा आपकी जिंदगी के अंदर, एंड आपकी जिंदगी उस तरह से फिर टर्न की जाएगी. अगर अच्छा किया है तो बहुत ज्यादा रिवार्ड मिलेगा ताकि आप और अच्छा कर सको दुनिया के अंदर. अगर उतना अच्छा नहीं किया है, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ लेसन. ही इज अ हार्डकोर टीचर Saturn. कभी जैसे जुपिटर इज अ गिवर, जुपिटर को गिवर माना जाता है, बहुत कुछ ऐसे ही दे देते हैं खुश होकर, बट Saturn डजंट गिव लाइक दैट. वो हार्डकोर टीचर है, मतलब पनिशमेंट दे के उस इवेंट से, उस एक्सपीरियंस से आपको गुजारते हैं ताकि आपकी जिंदगी बेहतरीन बने. जैसे ही आपको सारी कुछ आपकी कार्मिक आपका चीज फुलफिल हुआ, उसके बाद आते हैं नंबर 9. नंबर 9 is again new energies which is available. It is number related to Mars, and it is a number of vitality. It's a very important number for your immunity. हम जिंदा है शायद मार्स के वजह से, because मार्स एक फील्ड क्रिएट करता है जिससे हम बाहर की हमारी जो बाहर की तत्व है हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हम बार बार बीमार ना पड़े. So this is a power of immunity. This is a power of fighting ability is there in Mars, and it gives a lot of courage. So it gives you, it fulfills after you're through with everything. It fulfills you with all the energies, rejuvenate करता है आपको दोबारा, so that you can again start with a zero, with a number 1 in your life. So इस तरह से इसकी दशा पैटर्न चलती है. तो हर एक जिंदगी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर अपनी एक क्लॉक सिस्टम चलती है. जैसा मैंने बोला कि एक डेट होता है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है. सो ईयर इज द वेरिएबल. आपका डेट एंड मंथ तो हर साल मौजूद होता है. तो ये वेरिएबल के बेसिस में एक क्लॉक सिस्टम होती है, दशा सिस्टम
numerological dasha system. There is an astrological dasha system. There are 44 different dasha systems. There are Yamini dasha, Jamini dasha system, Yogini dasha system. But numerologically भी एक dasha system चलती है. मानते नहीं है आप, हर एक का दशा सिस्टम डिफरेंट होता है. सो उस बेसिस में अगर उस दशा सिस्टम को समझा जाए किसके बाद अभी क्या नंबर आने वाला है, तो आपको काफी अपने डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है लाइफ के अंदर. यू विल एबल टू टेक अ बेटर सिस्टम. अच्छा अभी इस किस का नंबर चल रहा है, सो आई शुड बी कॉन्शियस ऑफ दीस देवतास व्हिच आर अवेलेबल विद मी, and then you can work accordingly. Okay, I hope you have understood that. If this is clear, you can type in the word clear in the comment box, then we can proceed further in the what are the different other things we can get from the number. अगर ये clear है तो just type in the word clear in the comment box, and let us now go in understanding what other numbers tell. Okay, thank you Hitesh ji for your quick response. So नंबर्स और क्या क्या चीजें हमें बताते हैं, नंबर्स क्या क्या चीज बताते हैं. नंबर्स टेल्स अबाउट द एलिमेंट्स. आप फिजिकल बॉडी आपकी किस तरह से पैदा हो, आप किस चीज से बने हो, व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच इज मेड अप ऑफ, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर. जो फिजिकल बॉडी में आपकी नेचर किस तरह से चीजों में बनी हुई है, इसकी समझ आपको इससे आती है. आपको इमोशनल मेकअप, आपके इमोशंस किस तरह के हैं, हायर इमोशंस है, लोअर इमोशंस है आपकी जिंदगी में, नंबर्स टेल्स अ लॉट. जिसके पास मिसिंग कुछ नंबर्स है उसकी इमोशनल मेकअप डिफरेंट होगी. जिसके पास अवेलेबल नंबर्स होगी उसके इमोशंस नंबर, एवरीथिंग कैरीज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन. अगर हम उसकी प्लैनेट्स को देखें आप उसकी इमोशंस भी समझ जाओगे. जैसे मर्करी इज वेरी क्विक, मैं टेम्परामेंटल की बात बोल रहा था. sun has a gravity, it brings a kind of a pride also with yourself. So emotions are also attached with these different numbers, and obviously every number has a planetary thing. अगर हम numbers को समझ जाए अपनी जिंदगी के अंदर तो हमारी जो planets की शक्ति हमारे को मिल रही है through the numbers, filtered through the numbers, तो उसके बारे में हमें knowledge मिल जाएगा. We will definitely understand more about the देवतास. हम अगर देवतास को डायरेक्टली फोकस करना शुरू कर देंगे तो हम देवतास के बारे में ज्यादा जान पाएंगे कि हमारे पास कौन कौन सी देवतास की नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है. अगर इन देवता की नंबर मौजूद नहीं है, जो देवता है उनसे कैसे हम मदद लेके, उनसे कैसे हम गाइडेंस लेके हम आगे का काम कर सकते हैं. जैसे किसी ने, इन्होंने उपेंद्र जी ने बोला कि खाटू श्याम जी, कैसे मतलब खाटू श्याम जी को अगर मानते हो तो अगर इन देवताओं को आप मानना शुरू कर दोगे तो देवतास विल ऑलवेज हेल्प यू. दे आर हेल्पिंग यू 24/7. बट वंस यू स्टार्ट टू फोकस ऑन द नंबर्स, the power starts to increase more and more in your life. So आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर्स आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं. एंड आपकी वोकेशन क्या है, आपकी टैलेंट्स क्या है, आप किसके लिए आए इस दुनिया के अंदर. तो अगर आपको मालूम है आज आपके 2 नंबर्स आर प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, so that means your vocation is somehow related to those numbers. अगर आपका sun एक्टिवेट हो रहा है, that means you have to give light to the community. So you are born to give some kind of a light to this world. So that those natures, agar aap mercury ke liye, mercury aapka activate ho raha hai, you have to do a communicator, you have to do in the communication. Venus activate ho raha hai, so you just related to comforts or something which is of a higher thing. agar aap Mars ke liye ho to aapka sports की abilities, fighting abilities, army abilities क्या आपके पास है, controlling abilities आपके पास है. All these vocations can be understood very well about once you start understanding कौन से numbers predominantly आपके life में जिंदगी में role play कर. So when I started this thing, I was saying that why you're interested. So even vocation can be a problem for some person कि मेरे को करना क्या जिंदगी के अंदर. If you see the chart, the numbers actually tell you what is your vocation and you should go about it. Vocation दो तरह से निकाला जाता है. एक vocation करना क्या है, that is on the basis of the missing number in your life, and किसको यूज करके करना है, that is the available number. So vocation is that which is available with you. So then soul power क्या है, आपका soul क्या करने आया. There is a soul. The soul is the most powerful thing in the life. आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, soul is responsible. अगर आपका बॉडी आज कट जाता है और हील होता है तो soul is responsible for that, because असली पावर, असली वोल्टेज तो वहां से आती है. बाकी सब चीजें तो he is the huge voltage provider of the body. Soul has the power to transform, soul has the power to heal, soul has the power to bring about any change in your world, soul has the power to bring about financial change. So soul is the boss actually, but mind एक illusion create करता है कि mind is like a software. So soul power क्या है exactly, वो क्या power लेके आया, you can understand from understanding numerology. Mental makeup क्या है उस बंदे का, how is he thinking, what is a kind of a mental balance, उसका कॉर्पस कोलोसम से ठीक एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है. दोनों हमारे पास एक मिड ब्रेन होती है, दोनों लेफ्ट एंड राइट ब्रेन होता है. सो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कितना बैलेंस है ह्यूमन बींग्स के पास. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड बाय लुकिंग इनटू द न्यूमेरोस्कोप ऑफ द पर्सन. इट्स लाइक ए ह्यूमन बॉडी. सो कौन सा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कैसे चल रहा है, अगर क्रिएटिव है बंदा या इमेजिनेटिव बंदा या मल्टीपल लेवल्स पे सोच सकता है,
all these mental pickups you can see by just a flash in looking into the numeroscope. And योगास कितने तरह के होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट तरह के योगास होते हैं, नवस योगा होता है, गजकेशरी योगा होता है, परिजात योगा होता है, दामिनी योग होता है, different yogas are present. Similarly in numeroscope there are yogas which you can see for a person. yogas क्या है, वो जिंदगी किस तरह से जी रहा है, what is his thought process, what is his action process, what is his will process, उसकी उसकी materialistic दुनिया है या उसकी spiritual दुनिया है या उसकी इमोशनल दुनिया में जी रहा है. All these things you can understand by looking at different yogas. सक्सेस कैसे मिलेगा उसको, कितनी दिन बाद सक्सेस मिलेगा, किस तरह के सक्सेस उसको मिल सकते हैं, उसको किस तरह के लोग चाहिए होंगे अपने साथ जुड़ने के लिए. अगर कंपनी फॉर्म कर रहा है तो किस तरह से कंपनी फॉर्म करे, क्या अपनी योगास नहीं है तो दूसरे के योगास लेके वो काम करेगा. एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड by understanding the yogas present in one numeroscope. डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्या, जैसे मैंने बताया, एक है वोकेशन, आपके पास है क्या, बट आपको जाना किस तरफ है, जाना उस तरफ होगा ना फुलफिलमेंट करने के लिए जो आपके पास लाइफ में मिसिंग है. तो किस तरह से आप डायरेक्शंस ऑफ लाइफ को ढूंढोगे कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली. तो जो चीज नहीं है उसी को ढूंढना सबसे बेहतरीन होगा ना, instead of enjoying what you have in this life, because you have been given something missing in your life because of a reason, so that you have to fulfill. That is a karmic imbalance which has been created. वो karmic imbalance आपकी जिंदगी में हुई है, तो उस karmic imbalance को आप कैसे पूरा करोगे. एंड उसके बाद ये पूरी चीज इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट टू यू. ब्लूप्रिंट क्या होता है, आप अगर कहीं मेट्रो स्टेशन में जा रहे हो ना, आपको प्रिंट पूरा दिखा देते हैं, आप यहाँ से एंट्री करो, ये गेट है, दिस इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी, धीरे धीरे what will happen, you understand everything, you have a complete blueprint about yourself. Similarly you may have a complete blueprint for your family. Similarly you may have a complete blueprint for your for the company which you are doing. अगर आपको पता है कंपनी में इस तरह के लोग ज्यादा है तो कंपनी को उस डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे. ठीक है, कंपनी में अगर और दूसरे तरह के लोग हैं तो लीडर कौन बन सकता है फैमिली के अंदर, एवरीथिंग कैन बी सीन बाय जस्ट अ चार्ट. एक रॉन्ग लीडर क्या होता है घर में आजकल, आई हैड अ केस डे बिफोर यस्टरडे जिसमें फादर मदर बोल रहे मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में तो सुन ही नहीं रहा मेरी बातें. तो जब व्हेन वी सी द तत्व हमें पता चलता है नहीं, क्यों नहीं सुना, क्योंकि वो लीडरशिप के लिए आया है, उसकी थॉट प्रोसेस इनकी थॉट प्रोसेस एकदम डिफरेंट है. सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. तो दैट इज ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट मतलब ये सारी चीज की एक समेशन जो आपके सामने आंखों के सामने होगी. जब वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट इट यू विल एबल टू सी सो मेनी पिक्चर्स, और किस तरह से आप उस चीज को इंटरप्रेट करोगे उससे आपकी पूरी ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ निकल जाएगी. इज दिस क्लियर? इज दिस गेटिंग क्लियर? ये एक दिन में क्लियर नहीं होएगा, बट दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई आई एम दिस इज अ काइंड ऑफ एन थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मेनी पर्सपेक्टिव एज मच एज पॉसिबल. सो तीन तरह के मिथ एक्चुअली जिंदगी में है लोगों की. एक मिथ है कि लर्निंग प्रेडिक्टिव साइंस इज वेरी डिफिकल्ट. लोग ये कहते हैं कि ये प्रेडिक्टिव साइंस एकदम डिफिकल्ट है सीखना, एंड लोग ये भी कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन. लाइफ में कोई भी मुसीबत है, कोई भी प्रॉब्लम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. और थर्ड तरह की लोगों की मिथ होती है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ. तो ये तीन तरह के मिथ लोगों की जिंदगी में है. ये एक्चुअली एक मिथ है. सो मुझे पूछने दीजिए, मैं जनरली ये पूछता हूँ. सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं who really wants to understand and learn numerology. मैं आपको बहुत सिंपल तरीका समझाऊंगा न्यूमरोलॉजी सीखने का. सो अगर आपको सीखना है, you wanted to learn, बट मेरा आपसे सीखने से मतलब नहीं, मेरे को दूसरा एक आपको आंसर खुद को देना है क्यों आप सीखना चाहते हो. So if you wanted to learn numerology, just type in the word I in the chat box. Just लिखिए word I wanted to learn numerology more. So if you wanted to learn numerology, thank you Hitesh ji, and if some more people participate, I think that should be better. So जो लोग सीखना चाहते हैं, just commit to themselves that I want to learn numerology, because if you start committing to yourself, you will able to understand your things much more better. Thank you Shantanu for your quick response. But those who really wanted to learn numerology, thank you Vaibhav ji for giving a quick answer. They have to understand why they want to learn numerology. Because मैं आपको एक बहुत बड़ा राज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ. ये मैं अपनी जिंदगी, मैंने बहुत लोगों के लाइफ में ये चीज देखी होती हुई घटना है. आप क्यों सीखना चाहते हो न्यूमरोलॉजी? थैंक यू सो मच फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स. मैं जब शुरू कर रहा था कुछ लोग बोल रहे थे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट. मैं अभी अपना वो पॉइंट क्लियर करता हूँ. सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे. आई एम हम्बली सिंग. थैंक यू सो मच फॉर चिलिंग विद. आप एक चीज दुनिया में करके देखिएगा लाइफ में, आप कभी लाइफ को थोड़े दिन अपने लिए जी के देखिए और थोड़े दिन दूसरों के लिए देखिए. आप किसमें सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा? आपको कोई दोस्त आया और आपने उसको एक छोटी सी मदद कर दी और उसमें आपकी एनर्जी देखिएगा कितना ज्यादा है. आज शाम को लामा फेरा का मेडिटेशन है. मैं लामा फेरा मतलब प्रेजेंट करता हूँ. लामा फेरा करेंगे हमारे विद्युत जी.
मैंने विदु जी को बोल दिया कि इट विल बी संडे 3 to 5 PM विल बी कॉल्ड एज अ लामा फेरा इवनिंग। उसमें एक मेडिटेशन करवाते हैं विद्युत जी, अमेजिंग मेडिटेशन। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को फीडबैक होती है, बहुत शांति मिलता है उसको करने के बाद लोगों की, बट वो जो मिलता है ना, मेरा होल इवनिंग मेरे को बहुत पीसफुल जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कहीं पे भी रहूं, कितनी भी मुसीबत में रहूं, बिकॉज उसके बाद मुझे कहीं पे जाना होता है, हैंडल माय ओन बिजनेस, सो आई फील अ काइंड ऑफ अ पीस। सो दैट मींस अगर आप दूसरों की मदद करोगे इस सब्जेक्ट को सीखने में, तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इस सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी। देवतास की कोई बैंक बैलेंस नहीं है, देवता के पास कोई अपनी चीजें नहीं। देवतास जो एनर्जीज की हम बात करें वो 24 घंटे हैं फॉर द अदर पीपल, दीज नंबर्स आर फॉर द प्लैनेट्स। आप सोच के देखिए, सन इज बर्निंग हिमसेल्फ, हाइड्रोजन हीलियम, अगर साइंस में हम बात करें, हाइड्रोजन हीलियम बर्न किए जा रहे हैं, लाइट्स आर फ्लैशिंग फॉर हुम, so that the lights can come in the earth, plant बने उसकी, प्लांट से फूड बने, फूड से फूड चेन बने, उसमें हमें खाना मिले, उससे ये जो जितनी भी रेन हो रही है सारी चीजें दुनिया के अंदर, व्हाट इज दिस? दैट मींस ब्रह्मांड के पास कुछ ऐसी चीजें सब्जेक्ट है, अगर आप उसको सीख रहे हो ओनली फॉर द सेल्फिश पर्पस, you will get the blessing, but the blessing will be limited. But if you really want a delimited blessings, huge blessings, then I understand why you want to learn numerology. अगर उसमें अगर छोटे छोटे करके डिफरेंट लोगों का फायदा हो, अपने फैमिली मेंबर्स का फायदा हो, दोस्तों को फायदा हो, दूसरे लोगों का फायदा होना शुरू करे, तो जो ब्लेसिंग्स आएंगी ना, इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मैजिक होना शुरू हो जाएगा लाइफ में, आपकी ट्रैक बदल जाएगी लाइफ की। जब आपको खुद अपनी ब्लूप्रिंट पता चलेगा, ये चीज नहीं है, मुझे ये करना है, इतने सारे लोगों के लिए करना है, इतनी क्वांटिटी में करनी है, magic will start happening. So why I'm saying people, I just want, and thank you for sharing that you want to learn numerology, but always answer this question, why you want to learn numerology. Whenever you have a problem, and I really wanted to ask you how many really wanted to change your life problem, and so again remember, why should heaven help you come out of a problem? आपको अगर लाइफ में मुसीबत है, क्यों आपको हेवन हेल्प करेगा उस मुसीबत से प्रॉब्लम में आने के लिए? एंड what is the, how many of you wanted to discover your blueprint? आप क्यों अपनी, why it is very important even to discover the blueprint in your life? It is very important to discover the blueprint in your life so that you can remain a very very fulfilled. But every time remember this concept of why inside everything what you do. जब तक आप why में नहीं जाएंगे, तब तक उस चीजों को करने में मजा नहीं आएगा, तब तक उस चीजों से भी उतनी ज्यादा blessings नहीं मिलेगी जिंदगी में. So your first is your clarity, and that is very important. So those people who are interested in learning numerology, I will give you some quick tips of understanding numerology. How do you understand and practice numerology? So I have given you all the numbers. So आप कोशिश कीजिएगा इस numerology को अपनी जिंदगी में लाने के लिए on your own. आप सीख सकते हो, कोई भी ऐसी difficult नहीं है इस subject को सीखना. कैसे सीख सकते हो? There are various books which are available in the market. Obviously there are you can go to any of the library, Amazon से आप ले सकते हो books. There are good teachers in this numerology. बहुत अच्छे teachers हैं, उनसे आप सीख सकते हो. These are easiest methods. You don't need to spend any time in this case. Internet पे जा सकते हो. Only remember, internet is a very chaotic. मतलब जब भी आप इंटरनेट में जाए, आप ना एक चीज को एक तरह से पहले समझ लीजिए बिफोर जंपिंग थिंग्स हियर एंड देयर. अगर आप कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट की कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसके, बिकॉज हर एक जो इंसान अभी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, मतलब इन एस्ट्रोलॉजी में देयर आर सो मेनी गुड टीचर्स. Pandit Sanjay Rath, Kiran Rao, they teach totally different. When I teach astrology, I talk about soul communication is astrology. My astrology entirely different from normal astrology. My numerology is entirely different. अगर if you are connected with me, I always teach you to communicate with the number. कल लोग मुझे पूछ रहे थे, सर how do we do soul communication with the number? आपको बहुत सारे, so every teacher teaches in a different format. आप पहले उसकी पूरी चीज समझ लीजिए, उसके बाद आप कीजिए, चीजों को जंप मत कीजिए. So that will be much more better. You will able to understand in a theory. Things are very scattered in the internet. You can join, obviously different institutes are there, like even Bharati Vidyavan and all institutes are there. You can work with other numerologists, because numerology is all about practice. Understand it very very well. आप जैसे आज मैंने सीखा है, आज आपको अपने बारे में समझ में आएगा कि आपके पास कौन कौन सी नंबर्स अवेलेबल है. और जितना ज्यादा दूसरों का चार्ट लेके आप स्टडी करोगे, क्लोजेस्ट पीपल से स्टडी करो, आपके फैमिली मेंबर्स को देखो, उनकी नंबर्स क्या है, उसकी सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, अगर आपने लिख के रखी है सारी चीजें, तो आपको समझ में आ गया कि उनके पास मून ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, ये ईगो ज्यादा दिखा रहा है, ये ज्यादा बकबक ज्यादा करता है, he tells a lot of things, he has a wisdom, ज्ञान दिखा रहा है अपने आप को, और he wants to do a little bit fashion. You can understand. So you can even be with some numerologists, उनके साथ रह के be, मतलब आज के डेट में तो everything is online.
शेयर द चार्ट, सर मेरे पास ये केस स्टडीज हुई हैं, हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहते हैं, न्यू केसेस हम डिस्कवर करते हैं, यू कैन लर्न न्यूमरोलॉजी। सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग न्यूमरोलॉजी। ऑफ कोर्स एज आई सेड, मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने बोल दिया था, वी हैव वेरियस कोर्सेज इन थिंग्स, और हमारा सबसे बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमारे पास है, which is redesign your destiny with source numerology. Why it is called as redesign your destiny? रीडिजाइन ऑलरेडी आप डिजाइन हो चुके हो, ओनली थिंग इज आपने उस चीज को, हम लोगों ने उस चीज को डिस्कवर नहीं किया। जब हम अपनी स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं तो हम उसके बारे में ज्यादा अपने आप को बेहतरीन, जो टूल्स हमारे पास है उसको अगर हम ठीक से यूज करें तो हम जिंदगी को ज्यादा बेहतरीन यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये लाइव क्लास है, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वैसे ही लाइव क्लास है, इसकी रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, सेम थिंग, इट हैपेंस फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे एंड एवरी टाइम दिस प्रोग्राम इज इवॉल्विंग। जो लोग एकदम शुरू में ज्वाइन किए थे, अभी बहुत सारी न्यू चीजें हम लोग इस कोर्स में एवरी टाइम वी keep on joining. It is an early morning 8 to 9 a.m. class, but the timing has nothing to do with this. आप एक चीज ऐसा समझिए, ये आपके पास एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम आ रहा है बेसिकली, तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम को आप कभी भी वॉच कर सकते हैं 24/7, बट आई एम फिजिकली अवेलेबल, आई एम टेलिंग अबाउट ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो जितनी भी सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन लाइफ, दे आर वीडियो बेस्ड प्रोग्राम, बट वीडियो में क्या होता है, मैं अर्ली मॉर्निंग आता हूँ, मैं उस दिन के बारे में बताता हूँ, ये चीज है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दीज आर ऑल गिवन टू यू, यू कैन गो एंड रीड देम ऑन योर ओन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, 8 से 9 बजे बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो I come every day, this 5 days early in the morning. I tell about the things. मेरी रिकॉर्डिंग मिलती है, दूसरी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, डिफरेंट वीडियोस आपके पास अभी अवेलेबल, बिकॉज वीडियोस एवरी टाइम इंक्रीज हो रहे हैं हमारी ये वीडियोस। पहले जो वीडियोस थे, अभी जो थे, द मटेरियल कंटेंट स्लोली एंड स्टडी आर इंक्रीजिंग एवरी टाइम। एंड उसके बाद क्लासेस आर एक्सप्लेन्ड विद माइंड मैप्स एंड अदर डायग्राम्स। सो माइंड मैप एक बहुत अच्छी टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो, और माइंड मैप से बहुत जल्दी बहुत सारे प्रेजेंटेशन एक साथ दिया जा सकता है। So it is explained by mind map, and obviously recorded video and contents are sent and practical assignments are given. See, आप अगर assignment नहीं करेंगे तो न्यूमरोलॉजी सीखने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीजें एक्टिवेट नहीं होगी। जिस चीज में आप फोकस करते हो ना, वो चीजें एक्टिवेट होनी शुरू होती है। आपके लाइफ में कोई चीज मिसिंग है, अगर आपका फोकस है ना उसके अंदर, तो वो भी चीज आपकी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी लाइफ में। तो जैसे ही हम न्यूमरोलॉजी करनी शुरू करते हैं, हम बोलते हैं कि सारी देवताज एक्टिवेट हो जाती है। तो क्यों बोलते हैं? कि आपका फोकस उधर जा रहा है। तो आपके जैसे ही फोकस जाएगा, इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन इज हैपनिंग। what you are doing, where you are putting focus, there's a law of compensation happening from the other side. आप फोकस दे रहे हो ना देवता, तो देवता भी आपको फोकस देंगे। वेरी सिंपल चीज। जैसे ही आप न्यूमरोलॉजी जैसे टीचर या एस्ट्रोलॉजी में, जैसे ही आप किसी भाव के बारे में समझते हो, जैसे आप एरिस के बारे में समझ रहे हो, या आप पहले भाव या पहले घर, दूसरे घर के बारे, वो घर आपकी जिंदगी में एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है। जैसे ही आप न्यूमरोलॉजी समझने की शुरू कर देते हो, तो आपके लिए वो नंबर लाइफ में अचानक से एक्टिवेट होना शुरू। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उस मोमेंट में क्या होता है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो, यू मे एनकाउंटर इवन पीपल हु हैव, जैसे सन की कोई कैरेक्टरिस्टिक वाला इंसान आ गया, अगर यू आर ओपन विथ हार्ट, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, अरे कोई रवि नाम का लड़का आपकी जिंदगी में आ गया, आप नंबर 1 पे स्टडी कर रहे हो सकता है पॉसिबिलिटी। अगर आप इतने क्लोज हो इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपकी लाइफ भी थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हो जाती है उस वक्त, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू फील गुड ऑल डे। So this is a practical assignment, आप असाइनमेंट करते हो रेगुलरली। सो लैंग्वेज इज हिंदी एंड इंग्लिश। जो भी मतलब अगर ग्रुप अगर हिंदी में हो तो ज्यादा हिंदी में पढ़ाई जाती है, अदरवाइज इंग्लिश इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज। हम लोग पर्सनली आपकी असाइनमेंट रिव्यू करते हैं, मैं खुद असाइनमेंट सारी रिव्यू करता हूँ। धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बट अभी यस वी सेंड यू इमीडिएटली जो भी मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर, एंड लिटरली ऑल डे सपोर्ट है इस प्रोग्राम के अंदर। यू कैन रिपीट द क्लास एनी टाइम ऑफ द थिंग। आपने आज क्लास अटेंड किया, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी लाइफ लॉन्ग ये क्लास अटेंड कर सकते हो। And we have a lot of testimonials. If you're wishing to see testimonials, वैसे भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग खुद बोल सकते हैं कुछ भी। हितेश जी, तानिया जी, हितेश जी, you're there? Yeah. Good morning. So first of all, thank you very much, Satya ji, for giving us to introducing ourselves to this. We are blessed with God's blessing, so that we can know this. And basically, why I wanted to learn numerology is wanted to see what are my strengths, which I was not aware earlier. And as Satya ji also said rightly, that you can find out and you can learn and replace the energies which are missing with the missing numbers or whatever. So, and also I came to know about the strength with the numbers
And the best thing I came to know is how to fulfill that missing number by helping others. So that's why, and it's very good that we are able to join this repeatedly, do the course repeatedly. So every time we feel a lot of positive energy. We are actually waiting every time to see this for the class to happen. Thank you very much. Thank you so much, Aditya. Tanya, do you like to have some say something? It has been nice attending the lecture sessions, and I have been attending. So every time you attend, you gain something new online. Thank you so much, Tanya ji. So there are different numerologists who attend our class. There are different doctors. Tanya ji herself is a doctor. There are different engineers who have been attending our class. So this thing. So if you are interested, then I will share further about the pricing and other things which we. So how many of you are interested in this? So if you say you're interested, then मैं आगे बताऊंगा इसका. Otherwise, I am through with my class. Any questions, you can just let me know. So if you're interested, then I'm going to share about my class and the pricing, the energy exchange which you need to give. Just excuse me for 2 minutes. Just. Thanks for waiting. So, so any of you are interested, just let me know. I will then share the pricings and the other details with you. Let me anyway share the things. So a lot of people who can. So this is the redesign your course with source numerology. So what we are going to give, this is a 5 days. What are you saying? Okay. Know the few details. Okay, I'm telling you. So this is a 5 days Zoom class from 8 to 9, and obviously with video recordings. Now I'm giving in bonus my book also along with this. This is called as Redesign Our Destiny with Source Numerology, and you will also get a forgiveness practice. Forgiveness is very important for you because जो भी चीज life में हुई है is because of some mistakes which has happened in your life. So forgiveness is a very, very important thing, and you get access to the source community, and one of the family members of you can access this program, and you will get one-to-one with me. आप एक अपने बारे में पता लगा सकते हो. So this whole total program value, अगर आप देखो individually, so it is around like rupees 499 original price. This is also 499. This book is, sorry, 499, 499, 499. The forgiveness practice is itself is 1599. These are the valuation I am giving. This is so source community access is priceless, and I charge one-to-one is 2100, and the total valuation is around 25,900. But here, what you have to give is 2,999 only. So if you want, you can go to this link, and I'm going to post this link to you, and on the chart. If whoever is interested can anytime go in this link and can do the needful, and they can get access to this product after doing the registration and all. Or you can also use these numbers below, and you can still do the needful by paying. And also what I'm going to do, I'm going to share 2 numbers with you. You may have any questions regarding your astrology or numerology. You can connect with any one of us, either me or Shrikant, so that you can do the needful. So this is all about it. And if you have any questions, do let me know. And we have other programs also which is happening today, and so you can also connect to us, and we can share that links with you too. Any questions, anything you guys want to know at this moment? Sadhvir ji, Shantanu ji, any questions, anything related to this? So how did you find this session? First tell me. So there are a lot of sessions we are actually about to do. So if you find it interesting, you want yourself to be, आप लोग चाहते हैं कि covering in the 5 days. Okay, I will just share what I will be covering in the 5 days. Thank you for asking this. Thank you. I just did mine. Okay, what is day 1? Now day 1 we start with an orientation. Orientation is that we talk about your name, your date of birth. We talk about more about source. Source क्या है? Source tools क्या चीजें हैं? And
व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, जो आपने सीखा हम थोड़ी सी गहराई में इसको लेके जाते हैं. वी अंडरस्टैंड अबाउट सोर्स स्वॉट एनालिसिस, and first is a little light. We understand what is date of birth, what is month of birth, what is year of birth, what is soul number, what is activator number. हम इसके ऊपर बात करते हैं पहले. Now next day I take you into an entirely different world. We start to understand what is the levels of existence. Levels of existence क्या है, आप कहाँ पे हो, आपकी frequency अभी कहाँ पे, physical body में है, mental body में, emotional body में जी रहे हो, या soul में soul awareness है, or you have an alignment or disalignment with the source. It's very important to understand from where exactly the problems are coming. So okay, Taneji, we will get back to you on this. Then the most important thing is your karma, because you have to understand karma very, very well. I think this you will understand extensively about karma. What is good karma, bad karma, what are other two different kinds of karma, what is ancestral karma, karma कितने तरह से होते हैं, कितनी तरह की karma होती है जिंदगी के अंदर, what is financial karma, places. You understand the exact science. हम बोलते हैं अच्छा काम करो तो अच्छा होगा, कैसे बॉडी में कैसे काम करते हैं, कौन सा सेंटर है बॉडी के अंदर जहां से कैसे जाते हैं, व्हाट इज आकाश, कैसे वहां पे चीजें कन्वर्ट होती है, कैसे आपकी लाइफ में आती है, एवरीथिंग वी टॉक अबाउट दैट. देन यू अंडरस्टैंड 5 एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट्स इज अ मेजर कॉन्सेप्ट, जहां से नंबर्स के साथ आपकी फिजिकल बॉडी के कोरिलेशंस कैसे हैं, नंबर्स के साथ आपकी फाइनेंसेस की कैसे कनेक्शंस है, नंबर के साथ आपकी रिलेशनशिप्स की कैसे कनेक्शंस है, एवरीथिंग यू स्टार्ट टू नो. कौन सी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यू नीड टू टेक केयर अगर आपकी सर्टेन मिसिंग ऑर्गन्स हो, वी टॉक अबाउट दैट. एंड उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, आपकी जिंदगी में कितने तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं. अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम एस्पेक्ट्स मतलब है, हम समझते हैं कि सिर्फ मनी फाइनेंसेस यही हमारी जिंदगी के एस्पेक्ट्स, एक्चुअली ये नहीं है. हमारी जिंदगी की रिलेशनशिप्स में बहुत टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत तरह के हमारे डिफरेंट जर्नीज होती हैं, सोल जर्नीज अलग होती हैं. तो वी ओपन एवरीथिंग फॉर यू एट दैट इन दिस डे. उसके बाद हम नंबर्स, जैसे हमने इस तरह से नंबर एक्सप्लेन किया, हम और डीप में जाते हैं नंबर्स के बारे में, and we explain about money and the number correlation, and we understand journey of numbers in a much more better way, and we try to experiment on activator numbers. Now activator numbers से मैंने पहले भी बताया था, there are 3 kinds of number, एक life path number, एक destiny number, उसको ड्राइवर कंडक्टर, एक नंबर होते हैं जिसको एक्टिवेटर नंबर बोला जाता है. वो एक्टिवेटर नंबर क्या है, क्या वो कहाँ आपकी जिंदगी में काम कर सकता है, किस तरह से आप उसको ढूंढ के निकालोगे अपने लाइफ के अंदर, कि वो किस तरह से एक ऐसा प्लैनेट जो आप हमेशा आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा, तो उसको कैसे ढूंढा जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि हो सकता है आप जहां पे जिस तरह की आप कर्मा करोगे, अच्छे बुरे, अगर बुरा कर्मा करोगे तो अगर आपके पास नंबर अच्छा भी है तो भी वो खराब हो जाएगा. So it's very important to understand the karma and correlate with even finding the activator number. तो activator number के related अगर कुछ काम करोगे, ये लाइफ पाथ के रिलेटेड कुछ काम करोगे, सोल से रिलेटेड कुछ काम करोगे, तो आपका लाइफ बेहतरीन उस तरह से हो सकता है. And you can be blessed much more. फिर हम न्यूमरोस्कोप्स में जाएंगे. There are different types of न्यूमरोस्कोप्स available. तो न्यूमरोस्कोप्स में हम उनकी डिफरेंट यूसेज समझेंगे कि वास्तु में न्यूमरोस्कोप कैसे यूज होता है. फिर जब आप ह्यूमंस को देखते हो या पेट्स को एनालाइज करते हो तो कैसे न्यूमरोस्कोप का एनालाइज किया जाता है. So we will understand more about numeroscope. Day 4 we talk about दशा. Very important. आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई चीज नया लॉन्च कर रहे हो, वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, और आपकी दशा वहां ठीक नहीं चल रही है, कुछ और चीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आपको वहां पे गुरु से विजडम लेने की बात बोली जा रही है. तो आप ठीक से उसको अगर नहीं अप्लाई करोगे, मिसिंग नंबर्स की दशा है, कुछ उसमें आपने काम कर लिया, तो कैसे आपको पता चलेगा. तो हर एक जिंदगी में एक अलग दशा पैटर्न होती है. सो उस दशा को ढूंढना लाइफ में, न्यूमरोलॉजिकली कौन सा दशा चल रहा है. एक दिन आपको सुबह आपने सारा कुछ सेम किया, मतलब एक तरह से, मतलब रात को आप अच्छा सोए, अच्छा खाना किया, बट सुबह उठ के दिन में सेम एनर्जीज नहीं है. क्यों नहीं होती. जस्ट ढूंढा जाए तो पता चलेगा उसके अंदर हमारी कुछ दूसरी एनर्जीज चल रही है, जिसको हमें ढूंढना है. दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वास्तु. Now this Vastu is all about the numerological Vastu. Vastu is a very big subject. It should be based on astrology, purely on Ashtak Varga. तब जाके उसको फिर वास्तु आचार्य को देना चाहिए, उसके बाद आर्किटेक्ट के पास आना चाहिए. बट ये जो वास्तु है, दिस इज अ वेरी इजी वास्तु बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर. उसको भी अगर आप करोगे, अगर 5 एलिमेंट जिंदगी में ठीक से घूम रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं, फ्लो ठीक से, तो इट्स एन आउटर बॉडी. तो किस तरह से आप वास्तु कर सकते हो. वास्तु इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरोलॉजी. ठीक है, टाइम एंड स्पेस मोमेंटम जो है, दिस इज ऑल अबाउट वास्तु. वास्तु के बारे में हम समझाते हैं सॉल्यूशंस ऑफ मिसिंग नंबर्स. अगर आपकी जिंदगी में मिसिंग नंबर्स हैं तो उसकी क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऑर्बिटल एक्टिवेशंस, एनर्जी ग्रिड्स, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं लाइफ के अंदर. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो आप एक चीज समझिए, आप जाके, जैसे आप कोई भी है यहाँ पे, जैसे हितेश जी है या कोई तानिया है, तो तानिया जाके अपना डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं बोलते हैं हाय आई एम डॉक्टर तानिया.
नेमोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका किस तरह से नाम को यूज किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है, उसके अंदर इन एंड यांग एनर्जी क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अल्फाबेट्स को नहीं बदला जाता, इसीलिए देयर इज अ कबाला सिस्टम, एक न्यूमरोलॉजी है। कबाला इज टोटली बेस्ड ऑन, मैक्सिमम उन्होंने इजरायली लोगों ने उन्होंने स्ट्रेस दिया है ऑन द नेमोलॉजी बेसिकली। सो उन्होंने नाम के ऊपर ज्यादा काम किया है, क्योंकि उनको लगता है कि नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, कोई कंपनी नेम ओपन कर रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, नेम शुड बी वाइब्रेशंस। वी टॉक अबाउट द ग्राफोलॉजी, कुछ कंपनीज हैं जो खुद ही बता देती है हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। सो यू नो व्हाट आई एम मीनिंग। सो नेमोलॉजी इट्स अ पावरफुल सब्जेक्ट। नेमोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बट इसमें हम थोड़ा सा इसके अंदर बताते हैं। देयर आर 5-7 प्रिंसिपल्स व्हिच वी टेक अप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर योर नेम। कहाँ पे आप अपना नेम करेक्शंस करोगे, किस तरह से आप अपनी ग्राफोलॉजी में अपना नाम लिखोगे, that is very important. And then we discuss on the 5th day how you practice and progress further in this art of numerology, and how to take this holistic picture, किस तरह से आप लोग इस पूरे पिक्चर को आप कैसे अपनी ब्लूप्रिंट को पूरी डिस्कवर करोगे using everything what has been taught about, and how can you practice further, and how can you grow and help yourself to become a good numerologist in this world. So is it clear, sir? What is yeah, Rita ji has asked this question. Thank you, Rita ji, for asking. So these are the Rita ji which we cover in this 5 days, and of course we cover a lot of things more, because flow में पता नहीं क्या आ जाता है, कौन से क्या questions पूछते हैं। Name to make a difference, I agree. Yeah, name is everything. You understand? आप जाके कभी नहीं बोलते my date of birth is so and so. You go first till your name. मोदी जी का example ले लीजिए ना, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। When people started talking about मोदी, so what happened? Yeah, तानिया जी, रीता जी बताइए। सर ये न्यूमरोलॉजी में आजकल काफी सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं कि कोई कहता है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, कोई लोशो ग्रिड है। तो सर ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हमें किस पे नहीं, फोकस। मैं आपको बार बार यही चीज बोला हूँ, मैं आपको जैसे इसमें भी बोला हूँ ना, आप एक चीज समझिए, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। आपको ध्यान से बताऊंगा मैं, अगर हम सोमवार बोल रहे हैं तो वो लोग मंडे बोल रहे हैं, तो दोनों की प्लैनेट्स मून हो गई, ठीक है। नंबर्स अगर हम एक बोल रहे हैं, हम एक बोल रहे हैं, वो 1 बोल रहे हैं, बट दोनों की एनर्जी सेम है, सन से ही आ रही है। अगर हम 2 बोल रहे हैं उनका भी, तो हम लोग एक ही हैं। तो मेन साइन, बिकॉज ईश्वर ने ये एनर्जीज दी है, वहां पे कुछ उन्होंने ली है, इजराइल ने कुछ ली है, उन्होंने कबाला सिस्टम डिटरमाइन किया है। वैदिक सबसे पावरफुल मैं मानता हूँ, इसलिए वैदिक मैं कभी नहीं सीखा। तो हम लोग वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी करेंगे, थोड़ा सा टच ऑफ कबाला इनसाइड इट, पाइथागोरन। आप फाइनली चीजों को सेम कर रही है, मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कैलेंडर कौन से यूज करती हैं? आप वैदिक नहीं यूज कर रही है कैलेंडर, आप डेली कैलेंडर यूज कर रहे हो। तो हम जब डेली कैलेंडर यूज कर रहे हैं, हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे इंग्लिश इजीली इंग्लिश करेंगे। वैदिक हम तब समझेंगे जब हम अच्छी तरह से प्लैनेट दशा सारे समझ जाएंगे। वैदिक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। वैदिक को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया गया है, तो वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में यूज होता है। उससे आप डिफरेंट लोकास की डायमेंशंस निकाल पाओगे, उससे आप मतलब स्टार्स गैलेक्सीज, वो अलग चीज है, सब्जेक्ट अलग है, बट उसको भी लोग अभी डाइल्यूट कर देने बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। कोई कुआ नंबर्स डाल दे रहा है, एक्चुअली कुआ नंबर्स नहीं है। आपका जो फर्स्ट नंबर है ना, जस्ट द डेट ऑफ बर्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जानिए, लोग इसको ड्राइवर कंडक्टर नंबर बोल देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द सोल एनलाइटमेंट क्या है, सोल किस तरफ उठ रही है। सोल राइज कर रहा है तो नंबर ही मत देखिए, आप सिर्फ सोल नंबर लेके काम कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक बंदा आपके सामने आया, छोटा सा बच्चा, इतना ज्ञान की बातें करते हैं, उसकी ना डेट ऑफ बर्थ ही मत देखिए, उसके सिर्फ सोल नंबर लेके काम कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा सारे, बिकॉज उसका सोल एनलाइटेंड है। तो जितना लेवल में आपको एनलाइटमेंट मिलता रहेगा, उससे हमें चीजें मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट होता है कि पहले आप एक को कंप्लीट कर लीजिए, गेट 1 एसेंस, फिर आप दूसरे में जाइए। तो उससे फिर देखिएगा आपको धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। न्यूमरोलॉजी तो कुछ भी नहीं है, सबसे डेंजरस है एस्ट्रोलॉजी। मतलब एस्ट्रोलॉजी में कितनी सारी दशाएं हैं, कितनी तरह की आपको चीजें समझनी है, अष्टक वर्गा समझनी है, एग्जॉल्टेशन समझनी है, वहां पे कौन सा प्लैनेट जाके मतलब डिग्री है वो समझना है, तो वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट न्यूमरोलॉजी सेम है, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी करिए आप इंग्लिश में अपना नाम लिखते हैं, उसी को यूज कीजिए। हाँ, साउंड वाइब्रेशंस को देखिए कि साउंड्स क्या पैदा करते हैं, बिकॉज फाइनली इज द साउंड। ओम से अगर सृष्टि हुई है, तो आप अपना नेमोलॉजी आपका जो है, आप रीता किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो, इन और के का क्या मतलब, इसको ज्यादा ध्यान दीजिए, तो इससे आपको क्लियर होने शुरू हो जाएगा। एंड आई थिंक we have to do applied numerology at the moment, which is a western science, जो हमें भी applied कर रहे हैं। So there is no confusion, only we need
to understand things separately. Okay. Right? Thank you So, for sir, asking this question. so you will be using this Losho grid format to understand Yes, numerology? Losho grid format, but Losho grid is a very powerful grid. It is a लोशो ग्रिड के भी डिफरेंट तरीके हैं यूज करने के. सो लोशो ग्रिड आप घर में कैसे लोशो ग्रिड को यूज करोगे, वास्तु करने के लिए कैसे यूज करोगे, ह्यूमन बीइंग्स को एनालाइज करने के लिए लोशो ग्रिड कैसे यूज करोगे. ह्यूमन का लोशो ग्रिड और वास्तु का लोशो ग्रिड इंटायरली डिफरेंट. ऑल्सो जब आप सेंट्रल को देखोगे लोशो ग्रिड का, तो आपको सेंट्रल में कभी कभी आपको एक्सेसेस बदलनी पड़ती है, जैसे 359 के एक्सेस को कभी कभी बदलना पड़ता है. सो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्सेस लोशो ग्रिड. लोशो ग्रिड वो नहीं है जो सिंपल लोशो बोला गया, बिकॉज़ इट केम फ्रॉम द लोशो, बट लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हैज हैपेंड. बट देयर इज अ वे टू सी लोशो ग्रिड. सक्सेस जब लोगे तो किस तरह से, कौन सा एंगल से आप उस चीजों को एनालिसिस करोगे. सो दैट इज अबाउट लोशो ग्रिड. सो इट इज नॉट दैट सिंपल लोशो ग्रिड. मतलब अगर, बिकॉज उसके पीछे विज्ञान है, आप किस डायरेक्शन में सोते हो उससे आपकी लोशो ग्रिड को चेंज किया जाता है, बदला जाता है. लोशो ग्रिड हैज अलाइनमेंट ऑफ द फिजिकल बॉडी, आल्सो डिफरेंट ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, लेग्स को रिप्रेजेंट करता है, हेड, एंगल, सर्वाइकल. सो एवरीथिंग इज देयर इन द लोशो ग्रिड. तो यस, लोशो ग्रिड इज नेम, बट बेटर टू टॉक एट न्यूमेरोस्कोप. जैसे हॉरोस्कोप होता है, better to call as a numeroscope. There are other grids like Kubera column वगैरह भी है basically for the finances and all. Those are different things. हमारे कुछ students को शायद मैंने दिया है वो सारे Kubera column वगैरह. But yes, you can call it a Lucio grid, but better to always call it as numeroscope, because उससे फिर it's a scope. जैसे telescope होते हैं, numeroscope is a scope to see yourself, see your energy in one flash. So that is the thing. How you use it depends on that. You can call it as Lucio. Yes, it has come from the Lucio, but a lot of experiment has been done after that. And sir, you said it will be a recorded session which we can watch anytime. But sir, if we have any doubts, so will you keep any live session? I am on the 7 days. I am 24/7 literally with all of you. हमारी 1.5 घंटे रात को बातचीत चलती रहती है लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. जो क्वेश्चंस पूछते हैं हम आंसर देते हैं डेफिनेटली, बट फिर भी मैं बोलता हूँ 11 साढ़े 11 तक अपना लास्ट क्वेश्चंस भेज दो, और नेक्स्ट क्लास में हम ले लेते हैं थोड़ी सी पहले. आई से जैसे 8 बजे शुरू होने वाला है, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा आप लोग 7:45 बजे आ जाओ. लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस की आपको क्वेश्चंस क्या क्या है, वी आंसर्स दैट क्वेश्चन. आपको विदाउट आंसरिंग योर क्वेश्चंस विल नेवर लीव द क्लास. एक बार ऐसा हुआ है कि एक बंदे ने पूरी क्लास अटेंड की, उसने बोला मेरे को समझ में नहीं. मैंने कहा क्यों नहीं समझ में आए, तो उसने बोला सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती. सो आई सेड कि कम अगेन. सो सेपरेट थिंग वाज अरेंज्ड फॉर दैट पर्सन completely. So I want you to learn this subject. I don't want to just, so you are going to be a part of that. Is why I said you're going to be part of a community. कितना powerful community है आप. You will meet different people. जैसे श्रीकांत जी हैं यहाँ पे, he's our technical head. आप you will become part of a family. ऐसे नहीं कि हम आपको जैसे आप आए कोर्स किया आप चले गए. देखिए ना, लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभी भी. They're continuously coming back. I really want you to come back and you make a difference in the world. That is my aim. So that every family has a numerologist in his house, so that he understand the it's a beautiful subject once you're in this subject. So that is my plan. So I cannot leave you empty. मैं just course complete करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि आए आप लोग complete करिए. So I would like to add one thing here. That thank you so much. मैंने subscribe. I mean, I have added an energy exchange here, but with me, since I am working and I have to rush to my office daily, but you've given us a chance to, my wife can also join from the same link. yes. So we both have benefited. That's a very, very good thing. And yes, because she has been attending on and off, and she's been regularly watching the videos जो आप session के बाद 1-2 घंटे के बाद भेजते हो, उससे though I am in office, but she is able to see and learn from that, and I will learn from her and from your sessions, recorded sessions later, and every time काफी कुछ improvements, upgradation, new आपका classes में सीखने को मिलता. That's a very good. And I learn from my students. आप believe नहीं करोगे. मतलब I learn so much. There are some students like Pawan वगैरह who is going to be the student coordinator very soon. कहाँ से cases लेके आते हैं people. There is like शुभोदनी जी है हमारे साथ, amazing. She is into government of India. But जब discussions चलती है बीच में मैं अपने चीजों में busy हो जाता हूँ. हम we cannot continue. But amazing. आप कहाँ से क्या लेके आते हो? It's very interesting for us. So every time we are getting upgraded, we are getting more research. So कैसे चीजें चल रही है, पैरालिटिक केस क्यों बनी है, तो काफी सारे आंसर्स आते रहते हैं. इट्स वेरी फन टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स. एंड मेरा एक ये मानना है कि हर एक फैमिली में, मतलब इसीलिए मैं
मेरा ये कोर्स इज ओपन टू द ओनली फैमिली मेंबर्स, नॉट आउट ऑफ ब्लड रिलेशंस और ये भी। तो आप अगर खुद ज्वाइन करना चाहते हैं, गिव योर एक्सेस टू योर हस्बैंड और योर वाइफ और योर सन और योर डॉटर और योर सिस्टर, both can watch, even if they are in different countries. I don't mind doing that. I have no problem in that. My thing is to spread this. I ask energy exchange why? I ask energy exchange because अगर नहीं करूंगा तो कर्मा heavy होगा. Here we are touching the darkness, darker side of yours ना. आप ये कर्मा है and we are suggesting you something. तो आप समझ लो आपकी darkness कहाँ जाएगी? तो बीच में money आ जाता है, चलो रोको यार, हमने पैसे exchange कर लिया, it is done. And you guys also should take the money. Money is a 7th dimension. मेरी एक course है the 7th dimension of money. So just आपको कभी टाइम मिले आप पढ़िएगा. मनी को लोग सिर्फ फिजिकल लेवल में जानते हैं, बट मनी आल्सो हैज अ मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, सोल लेवल, सोर्स लेवल. और हियर आई हैव गिवन यू टिप ऑफ द सोर्स लेवल मनी, क्योंकि आप जब कोई काम सोर्स लेवल में जाके करते हो ना, जो आपका दायरा बढ़ता है, इट्स ह्यूज. मतलब नरेंद्र मोदी एक टाइम चाय बेचते थे, समझिए उनकी चाय की एनर्जी आती थी, अब वो पूरा देश चला रहा है. कैन यू इमेजिन काइंड ऑफ सपोर्ट इज गेटिंग फ्रॉम द सोर्स वर्ल्ड? कैन यू इमेजिन काइंड ऑफ सपोर्ट इज गेटिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? दैट इज अ जर्नी. आप जैसे ही बढ़ना चाहते हो ना, बोलते हैं ना, जिस चीज को आप यूज करोगे, आप दांत को यूज नहीं करोगे, ऐसे चबा के खाओगे, एक दिन दांत गिर जाएंगे. जिस दिन आपने चबाना खाना शुरू कर दिया ना, आपके दांत बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. हमारे बॉडी में डिफरेंट डायमेंशंस है, आउटसाइड डिफरेंट. जिस डायमेंशंस को आप यूज करना शुरू कर देगा ना, उसकी पावर आपकी बॉडी में बढ़ती रहती है. व्हाट यू फोकस स्टार्ट टू ग्रो इन योर लाइफ. न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द हिडन टूल्स, जेम है हमारे पास. जब आप फोकस करना शुरू करते हो, जस्ट नॉट द प्लैनेट्स, योर देवतास, ऑल द एनर्जी स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड इन योर लाइफ. कुछ कुछ अद्भुत अद्भुत घटनाएं भी होती है लोगों की. लोग एक काम कर रहे हैं, बोले सर मेरा काम बंद हो गया. मैंने कहा वेट करो थोड़े दिन के लिए, एंड ही कम्स बैक कि सर ऐसा चीज मिला है कि एकदम मजा आ गया सर. आई बिकम हेड ऑफ 150 कुछ सोसाइटी का कुछ ऐसे बने, बहुत मजा आ रहा है. क्यों? क्योंकि आप प्यूरिफाई हो रहे हो. आप एक गलत लाइन में हो, आपको सही लाइन में लाया जा रहा है. वन शुड नॉट टेक दिस सब्जेक्ट वेरी लाइटली. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है. आप लोग यहाँ पे अगर आए हो, इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, मे बी सम रीजन. We will know about it. Maybe time will tell you कि कहाँ से, मतलब कैसे कैसे benefits मिलने जा रहे हैं लोगों को, तो धीरे धीरे पता चलेगा. That's what I'm saying. This is a very this subject. Any other questions, sir? Any other person? Neena ji, sorry, I could. Neena ji आई हैं. Sunita ji, thank you so much for coming over here. One Life is there. Shantanu is there. Thank you, Shantanu, for all your comments. I do not know who is in iPhone, so. Thank you all for joining here. Any other questions? Please do raise your hands. You can use your comment box, and we are almost over. 12:30 को finish. Any of you wanted to join? I will reshare the links with you. जब भी आपको मन करे लाइफ में इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, do. We are not. We have a mission. We are working for the mission. So I've shared this thing. So this is Shrikantji's number. You can just just phone पे, Google पे, Paytm, कुछ भी आप करो. आजकल तो दुनिया बहुत फास्ट हो गया, so you can use anything like that. So you can use this, and I'm just sharing on the screen for everyone. And so there's an Instamojo link. Instamojo में जाके आप पढ़ाई कर सकते हो थोड़ा सा इसके बारे में, क्या क्या है कोर्स कंटेंट, और ज्यादा थोड़ा सा लिखा हुआ है. तो Instamojo is a. Thank you, Satyajit, for the knowledge. Thank you so much, Tanya ji, for coming over here. Tanya ji also very good. She's doing a very wonderful job. She's opening one website, जिसमें काफी सारे लोगों को मदद मिलेगी as a doctor, and it is going to be very so good for everyone. And everyone for joining. Thank you, Tanya ji. Yeah, So, thank you. Thank you so much, Tanya ji, for your good works. And आप मेरा और श्रीकांत जी का नंबर जरूर लीजिए, हमें कभी भी बॉदर कीजिए. We are just one bother away. Any one of you, every one of you. No, I'm definitely going to join after some time, after maybe a fortnight. Yes, no problem. Anytime you guys can. So you keep this number with you. So you can WhatsApp me and anyone, even all of you, anyone interested, anything. See, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपके आसपास भी कुछ लोग हो सकते हैं. This is one of the karmas, जिसको शायद मदद की जरूरत पड़े, तो आप इस चीज को आगे ले जाइए. I want everybody to take the mission of the source with you, because source is the source of everything. My mission is source mission. न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द सोर्स मिशन बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारा जो फाइनल फ्लैगशिप प्रोग्राम इज द सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम. कभी हो सके उनके स्टूडेंट्स को हम मिलेंगे. सो आप सोचो कि उनकी एक्साइटमेंट क्या है. सो उस लेवल में हमें पहुंचना है. और टेक द एनर्जीज ऑफ द सोर्स विद यू ऑल द टाइम. रिमेंबर सोर्स, बिकॉज़ सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. और चेंज योर लाइफ, चेंज योर frequency, and do the needful. Any questions, anything, just feel free to connect with me and just tell me I was in this webinar and I'm going to as much as possible answer your questions and queries.
Sir, just kindly share, if you can share the Lama Fera sessions link for today. That will be Yes, very Lama helpful. Fera sessions link. No, 2 minutes. I just slipped out. I forgot that. Just give me 2 minutes. I'm just sharing. No problem, sir. Maybe later, whenever you get. Then it is done. I just was rechecking on something that the link is active or not. So I'll just share here. Just you copy paste this thing, huh? Yes, thank Okay, Shrikantji has already shared it. Okay. Thank you Shrikantji for sharing this link. वो श्रीकांत जी ने भी शेयर कर दिया. आप इसको just copy paste करके रख लीजिए. And you can just come at 3. मैं रहूँगा. I will be introducing the whole thing session, and then I will give it to Viduji. He's a wonderful master, Lama Fera master teacher. Don't miss the meditation. Very powerful meditation. और अगर आप लोग मतलब इसको करना चाहिए तो we will talk about that. That is not a problem. We are always in this number only. You will able to contact us to understand more about the Lama Fera. So thank you all. Thank you all for being here. It was really very nice sessions, and hope to see you in some of our courses whenever you are ready, whenever you feel like. You're most welcome to attend any of our courses. And if you don't have any further questions, we would like to call it a day. Okay, thank you so much for all of you. God bless you, source bless you, numbers bless you beyond imagination. May your life transform like anything. Okay, thank you so much. Namaskar. Thank you.